He'll be a little late, so Okay. So Sabia, just to have the expectation setting done, Yes. what we will be doing is, of course, the broad outline on the entire district empowerment story. Apart from that, a quick session on how to create a micro learning package, okay, MLP, we will Yes. showcase, because that's the fastest mode to roll out any program, MLP for students, because the content is already on Diksha, right? Oh, yes. So, are you sitting with Aparna madam and Yes, Deepika yes. madam? Aparna ma'am is here, Okay. right beside. If you are comfortable, you can switch on your camera. Oh. Is it visible now? How are you, Aparna madam? Fine. Mhm. Uh, I welcome to this technical session, our central team in CRT, um, for how to create, review, and upload the micro improvement program content in our Diksha portal. I also welcome all our diet district Diksha team, that principals and their technical partners like reviewer and content creator to this program. Welcome to Sabia and welcome to Rakesh Kavita from Piramal Foundation. Uh, I hope this training program will enrich the capacity building of our faculties and diets to know how to upload the micro improvement program in Diksha portal. If Okay. any issues further, we will contact Sabia and also disturb our central team Rakesh ji for this purpose. Thank you. Yeah, no issues. So Sabia, just a quick expectation setting. How much time we have for this call? So we have fixed till 12 o'clock, but it can go beyond 12 o'clock if it's needed. Yeah, I think we should be able to cover till 12. Yeah. And So basically, focus is on to clarify the doubts of the diets that they have. So if we are clear with that, then we can go on. अच्छा, then Aparna madam, अच्छा, one more thing, medium of instruction क्या रखना है? हिंदी? हिंदी हिंदी ना? हिंदी अच्छा रहेगा. So in fact, I have one idea in mind when Sabia said doubts. So maybe at the onset, Sabia, if I can get to know कि जो भी डाइट्स जुड़े हैं उनके मन में ऑलरेडी एक दो सवाल रहेंगे, वो अगर मुझे पहले ही पता चल जाते हैं, then maybe my presentation and in the course of interaction, I'll ensure it is answered. Yeah, we can go ahead. वैसे भी हम जा सकते हैं actually. जा सकते हैं. और कितने डाइट्स जुड़े हैं आज मैडम या जुड़ने वाले हैं? लगभग 30 डाइट्स. लगभग सारे. ठीक है, सारे डाइट्स. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. ठीक है, तो आई थिंक हम शुरुआत कर सकते हैं. हमारे साथ एक स्टेप बैंगलोर से भी अथिरा मैडम जुड़ी है. वो दीक्षा में एक्सपर्ट है सारे अलग अलग एरियाज में. अथिरा, वेलकम टू द सेशन. Hi everyone, good morning. सो ठीक है मैडम, शुरू करते हैं. आई थिंक काफी लोग जुड़े, 34 कैन बी सीन. कि कुछ 2 मिनट रुकना है बाकी लोगों को जुड़ने के लिए? नहीं, शुरू करते हैं. कर सकते हैं ना? ठीक है, तो मेरा नाम राकेश ठक्कर है, जैसे मैडम ने ऑलरेडी बताया. सो थैंक्स फॉर टेकिंग टाइम आउट. आज हम इस चीज के ऊपर डिस्कशन करने वाले, क्योंकि ये नई सोच, ये नई पहल केंद्र सरकार से राज्यों के लिए हमने सितंबर से इसकी शुरुआत की. जो पहल ये है कि हम जिलों को किस तरह से एम्पावर कर सकते हैं. डिस्ट्रिक्ट एम्पावरमेंट प्रोग्राम, ये डिस्ट्रिक्ट एम्पावरमेंट अप्रोच, ओके, जिसके तहत डाइट जो सेंट्रल एकेडमिक बॉडी है उसको एम्पावर करके हम कैसे प्रोग्राम्स रोल आउट कर सकते हैं राज्यों के खुद के कॉन्टेक्सचुअल एक्सपेक्टेशन के हिसाब से. ओके, ये इसका ब्रॉड आउटलाइन है और उसका अभी नेक्स्ट स्टेप सारे राज्यों में हो रहा है. अगेन थैंक्स टू SCRT भुवनेश्वर, Aparna madam, Lipika madam, Osepa, to take the lead in this.
बाय द वे आई डोंट नो इफ ऑल ऑफ यू आर अवेयर, बट आपका जो डाइट है, डाइट खुर्दा, वो इंडिया का सबसे पहला डाइट बना जिन्होंने माइक्रो लर्निंग पैकेज लॉन्च किया। इंडिया का सबसे पहला डाइट, बाय द वे, ओडिशा पहला स्टेट, खुर्दा पहला डाइट। सो आई थिंक इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर ऑल ऑफ यू। अभी अपने को वही मोमेंटम आगे लेके जाना है ताकि आप सब लोग, सारे डिस्ट्रिक्ट्स इस एम्पावरमेंट को प्रोग्राम के फॉर्म में, रूप में आगे ले जा सकते हो। ठीक है, तो अभी एक अगला 5 मिनट लेटस ओपन दिस अप। अगर कोई डाइट अभी पहले ही सवाल पूछना चाहता है कि आपको एक दो चीजों पर क्लैरिटी चाहिए, तो इन द कोर्स ऑफ आवर इंटरेक्शन हम देखेंगे कि इसकी क्लैरिटी मिलती है कि नहीं। अगर कोई चीज पे जवाब नहीं तो वी विल कम बैक टू यू। फाइन। तो एनी डाइट कि आपको कुछ ऑलरेडी डाउट है क्या, तो आप पहले पूछ सकते हैं। आम डायट मानक मध्यरु किए जदि निजर डाउट अछि पचारि परंती आगे, तापरे आमे प्रोग्राम आरंभ करिवा हिंदी रे। हाँ सर नमस्कार। मैडम नमस्कार। नमस्कार। मैडम मु डाइट अनुगुल कहूची। मैडम हमरो जो दीक्षा यूजर आईडी क्रिएशन हेची, क्रिएटर मेंटर रिव्यूअर तीनटा जगह रे ओटीपी ए पर्यंत आसु नै। अरे प्लीज अनुगुल हिंदी आज्ञा। हिंदी रे करो, सेंट्रल टीम रिप्लाई देबे तो जानि परिबे। ठीक है मैडम। मैडम क्या है कि हमारे जो क्रिएटर मेंटर रिव्यूअर 3 यूजर आईडी क्रिएट हो चुका है, वो इसमें ओटीपी नहीं आ रहा है। अच्छा, ओके। तो इसमें आपका जो 3 आईडी क्रिएट हुआ है उसमें जो ईमेल यूज हुआ है, ईमेल, सर उस ईमेल में ओटीपी आएगा। नहीं सर, वो ईमेल में ओटीपी नहीं आ रहा है अभी तक। मैं बार बार कंप्लेन कर चुका हूं, लेकिन तो एक काम करना, Rakesh, we have raised a request to project Diksha support team also, but we ठीक, have ठीक। not received any response from them. ये सिर्फ ये डाइट में इशू आ रहा है, आई एम अज्यूमिंग। तो इस डाइट स्पेसिफिक हम वो टिकट अगर रेज हुआ है तो हम फॉलो अप ले लेंगे सभी। Okay, ठीक है। हाँ, तो ये जरा नोट कर लेना कौन से डाइट का था ये सवाल। अंगुल। अंगुल ना, ठीक ठीक है। अंगुल डाइट हम एक दिन में विल कम बैक टू यू, हाँ, विद इन 1 डे। सर बट थैंक्स, उससे ये भी कंफर्म हो गया कि आप काफी डिटेल में फॉलो ले रहे हैं। ठीक है, सर तो नमस्कार। डाइट बोलिए सर बोलिए। ढेंकानाल का भी ओटीपी नहीं आया है। अच्छा, मैं- बट आपने वो मेल बॉक्स एक्सेस किया है क्या, जहाँ से जो ईमेल आईडी डाला है क्रिएशन के लिए, आपका जो मतलब आपका कौन सा ईमेल यूज हुआ है आपको पता है? जैसे ओडी डाइट डॉट आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम .creator@gmail.com, सर वही हाँ। वही मेल वही है ना, ठीक सर। ठीक है, फेयर ना। तो ये डाइट का भी नाम लिख लेना सभी जिनको ओटीपी नहीं आ रहा है। क्या नाम था आपके डाइट का? गुड मॉर्निंग सर। हाँ, और सेकंड डाइट जिसने बात की उनका नाम क्या है? ढेंकानाल। अच्छा, ठीक है, लिख लेंगे। हेलो। हाँ गुड मॉर्निंग सर। आप प्रिया ब्रता बोलिए। हाँ गुड मॉर्निंग सर। सर मैं देवव्रत बोल रहा हूँ, डाइट जगत सिंहपुर से। राइट, सर जगत सिंहपुर। मेरा आईडी है वो ऑलरेडी मैं मतलब एक्सेस कर चुका हूँ, मतलब लॉगिन हो गया है, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन मेरा रिव्यू में मैं देखा कुछ 3-4 रिव्यू करने के लिए आ गया है, तो वो तो हम रिव्यू नहीं करेंगे सर। एक्चुअली मेल आया है कि आई थिंक 4 कंटेंट मुझे रिव्यू आईडी में आया है, हमारे रिव्यू आईडी में, कि अच्छा। रिव्यू करने के लिए, तो गुड वो गुड तो हम क्वेश्चन। नहीं करेंगे ना। बिल्कुल नहीं करेंगे। अभी मैं आपको ये जो अपना दीक्षा का आर्किटेक्चर है ना, उसका डायग्राम क्विकली देता हूँ। अगर प्रियव्रता एक रिव्यूअर है, आपके पास रिव्यूअर आईडी है, सबिया एक रिव्यूअर है, मैडम एक रिव्यूअर है, बराबर, अथिरा एक रिव्यूअर है। तो हाँ। जितने भी रिव्यूअर ओडिशा स्टेट के अंडर जिनको रिव्यू करना भी नहीं आया। ठीक है, तो लिख देंगे हम, आपका नहीं आया ओटीपी। तो जितने भी रिव्यूअर है सबको ऑटो ईमेल चला जाता है। ओके ओके सर, वो ऑटो ईमेल है सर, जो हमारे डाइट से नहीं है सर, हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं है। परफेक्ट परफेक्ट। तो ऑटो ईमेल सबको जाते हैं, वो ईमेल आते रहते हैं, उसमें देखने की जरूरत नहीं है। बट जो ठीक है।
लेट से आपका जो डाइट है जगत सिंहपुर या जो भी हाँ। था, तो उसमें जो क्रिएशन हुआ है उस क्रिएशन का रिव्यू आप करेंगे, दैट इज इट, सिंपल। ओके ठीक है, ओके ठीक। नेक्स्ट डाइट, किसी और का सवाल है? आई थिंक डाइट खाली कोट कुछ बोल रहे थे, वही था क्या इशू ओटीपी वाला? हाँ, डाइट फॉलिकल का मेल क्रिएट हुआ है, लेकिन कोई ओटीपी नहीं आया अभी तक, वेट कर रहे हैं हम लोग। उसके लिए आप कहाँ पर गए थे? मतलब आप फॉरगॉट पासवर्ड पे गए, बराबर ना? पार्डन? ओटीपी क्या? जनरेट करने के लिए आप कहाँ पर गए थे, कहाँ पर क्लिक किया आपने? वही मेल आईडी क्रिएट किया कर लिए थे, साइन इन रजिस्टर, गो इन प्रोफाइल, सबमिट, देन क्लिक ऑन जॉइन द कोर्स एथरे। नहीं नहीं, ये बात अलग है, ये बात अलग। एक मिनट होल्ड करना, मैं जरा स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ, 3 मेल आईडी क्रिएट हो चुका है हम लोगों का तब से, लेकिन कोई ओटीपी अभी तक नहीं आ रहा है, हम लोग वेट कर रहे हैं। नहीं, आपका शायद कुछ पॉइंट अलग है, आप कोर्स की बात कर रहे हैं, हम उस ओटीपी की बात करें कि जब आपको क्रिएटर और रिव्यूअर के राइट्स मिल गए तो वहां पर आपका पासवर्ड बदलना पड़ता है। हम पहले इधर दूसरे बार तो मैं जरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मैं वापस, ये दीक्षा पोर्टल है बराबर, दीक्षा.gv.in, ठीक है। अपर्णा मैडम, मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ, दिख रहा है। हाँ, तो मैं दीक्षा पे चला गया, मैंने एक्सप्लोर दीक्षा, ये जो बटन है लेफ्ट साइड का, उस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। तीसरा मैं टॉप राइट में चला गया, उसके पहले आपको एक पॉपअप आ सकता है कि टीचर रोल सिलेक्ट कीजिए, डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक सिलेक्ट कीजिए, नॉर्मल पॉपअप रहता है, वो आता है। वो सिलेक्शन के बाद आपको ये टॉप राइट में जाना है, ये लॉगिन का बटन है जहाँ पर बाय डिफॉल्ट जी आता है गेस्ट के लिए, तो मैं वहां पर क्लिक करता हूँ और नीचे लॉगिन का ये बटन है, वहां पर आपको क्लिक करना है। ये जो स्क्रीन आती है ना आपके सामने जो दिख रही है, और बड़ा करता हूँ इसको मैं, ये स्क्रीन में जाके आपको फॉरगॉट पासवर्ड पे जाना है। तो कुछ देर पहले जिन्होंने ओटीपी की बात की वो वही इसी की बात करें कि कोई और बात कर रहे हैं? सर वही 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 सर, आप हाँ। जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं हम वही फॉलो करेंगे। ठीक है, ठीक, फेयर ना, बिल्कुल सही है आपका प्रोसेस। तो बाकी लोग जो सुन रहे हैं उनको समझने के लिए बोल रहा हूं मैं कि आपको जो यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट हो गया है डिस्ट्रिक्ट डाइट लेवल पे, क्रिएटर, रिव्यूअर और मेंटर, ओके, उसके लिए ही है ये। आप जब लॉगिन करोगे, आई मीन स्क्रीन पे आओगे, तो फॉरगॉट पासवर्ड पे आपको जाना है और फॉरगॉट पासवर्ड में आपको वो ईमेल डालना है जो आपके लिए क्रिएट किया गया है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ ओडी एग्जाम्पल भुवनेश्वर के डाइट के लिए क्या रहेगा, od.bhuvaneswar.creator@gmail.com, कुछ ऐसे आपके रहेंगे, am I right? सबिया, क्या पढ़ा मैडम, यही है ना आपका नॉमेनक्लेचर? सर सर हाँ, तो इधर आप वो डालोगे ईमेल आईडी आपका, एंड नीचे आपको वो नाम डालना है जो एक्सेल में है। तो एग्जाम्पल वो ऐसा लिखा है, लेट से OD_, लेट से अंडरस्कोर आगे कुछ है, आई डोंट नो, ABC, जो भी कुछ आगे है, ये दोनों डाल के जब आप नेक्स्ट बटन दबाते हो, उसके बाद आपको ओटीपी इस ईमेल आईडी पे जाता है जहां पर कुछ डाइट को दिक्कत आ रही है, बट बाकी के लिए बोल रहा हूँ मैं। तो ये ईमेल का मेल बॉक्स ओपन करके ओटीपी लेके आपको ओटीपी डालना है। ओटीपी सबमिट करने के बाद आपको नया पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आता है। हाँ, तो वो एक्सपेक्टेड पैरामीटर्स के हिसाब से आपको बनाना है, 8 कैरेक्टर्स, अल्फा न्यूमेरिक, वो सब बना के आप डालोगे, उसको री एंटर करोगे और सबमिट करोगे, आपका पासवर्ड बदल गया और क्रिएट हो गया। फाइन, ये मेरे को दिखाना था। अभी मैडम जो बोली थी वो कुछ और चीज है, जहां पर वो कोर्स की ओटीपी की बात करिए। तो ठीक है, दिस डाउट आई होप हैज गॉट क्लियर। कोई और डाइट को कोई और डाउट है स्टार्टिंग में ही? क्योंकि आपको अभी इमीडिएटली प्रोग्राम के क्रिएशन में जाना है, आज से। तो आपको क्रिएटर आईडी उसका एक्सेस, रिव्यूअर आईडी उसका एक्सेस होना जरूरी है। तो और किसी डाइट को कोई और सवाल है तो बेशक पूछिए। देखिए
बोलिए मैडम। किसी को सवाल है? खली कोट को सवाल है कुछ? ठीक है। डाइट सेम प्रॉब्लम, डाइट देवगढ़, ठीक है, डाइट देवगढ़ को भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है सभी, यू कैन मेक अ नोट। फिर डाइट जजपुर, डाइट बालंगीर, I have listed down the names of the diets. The similar. ठीक है। तो और एक बार पूछ लेता हूँ, और किसी डाइट को कोई और सवाल है क्या, मतलब यूजर आईडी के अलावा, कि ये क्या प्रोग्राम है, आपको पता है कि आपको क्यों बुलाया गया है इस सेशन में? ठीक है, अगर किसी और का कोई डाउट नहीं तो वी कैन मूव इनटू द प्रेजेंटेशन। अपना मैडम हम प्रेजेंटेशन क्विकली देख लेते हैं, उसके बाद माइक्रो लर्निंग पैकेज फॉर स्टूडेंट्स कैसे क्रिएट करना है उसके ऊपर हम देख लेते हैं। फाइन। ଆଉ କୋଉ ଡାଏଟ ର କିଛି ନାହିଁ ଡାଉଟ୍? जस्ट गिव मी 10 सेकंड्स, मैं कुछ एप्लीकेशंस क्लोज कर रहा हूँ सिस्टम पे। मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। दिख रहा है क्या? Yes. ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं मोबाइल से लॉग इन कर रहा हूँ। प्रेजेंटेशन मोड में नहीं दिख रहा है क्या मेरा पीपीटी? Presentation mode पे नहीं दिख रहा है। ओके, स्वीट। अभी दिख रहा है प्रेजेंटेशन मोड में? Yes, अभी देख। ओके, ठीक है। सो ये क्विक रन थ्रू है इस अप्रोच के लिए कि ये पूरा डिस्ट्रिक्ट एम्पावरमेंट अप्रोच क्या है। तो वेरी क्विकली लेट अस रन थ्रू दिस एंड देन वी विल कम टू द एमएलपी क्रिएशन। तो सारे डायट्स को पता होगा ही कि ऑलरेडी इसके ऊपर कम्युनिकेशन इशू हो चुका है। सितंबर में हमने पहला लेटर इशू किया था, उसके साथ ये एसओपी भी रिलीज हुआ था। वेट, मैं मेरा लेजर पॉइंटर एक्टिवेट करता हूँ। हाँ, तो ये एसओपी भी ऑलरेडी रिलीज हो गया था जो एससीईआरटी के लिए था, दैट हाउ टू गेट यूजर आईडी क्रिएटेड, वो ऑलरेडी आप लोगों को हो चुका है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है 2 दिसंबर को हमने ये एनसीईआरटी से कॉल किया था, जिसमें खोरदा डाइट ने भी प्रेजेंटेशन दिया था कि उन्होंने कैसे एफएलएन
पैक लॉन्च किया था FLN ग्रेट टीचर्स के लिए। ओके, तो उसके ऊपर एक सक्सेस स्टोरी डिस्कस की थी अपार्ट फ्रॉम महाराष्ट्र, पंजाब एंड मेघालय। तो आई डोंट नो आप लोगों को चांस मिला क्या तब वो कॉल अटेंड करने का। अगर नहीं भी मिला तो भी अभी परसों 12 तारीख को मोस्टली डेट कंफर्म हो जाएगी, बट मोस्टली 12 तारीख को हमने नेक्स्ट कॉल रखा है जिसमें वी आर गोइंग टू इनवाइट ऑल डाइट्स ऑफ ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया अपार्ट फ्रॉम SCRTs ऑफ कोर्स। तो उसमें ऑल्सो भी वी आर गोइंग टू शोकेस वन सक्सेस स्टोरी इन डिटेल। तो ये 2 दिसंबर के कॉल में हमने शोकेस किया था। अगेन एज आई सेड कि आपका खोरदा पहला डाइट बना था तभी, ओके, जिन्होंने आई थिंक 21 नवंबर को आप लोगों ने लॉन्च किया था। तो थैंक्स टू खोरदा डाइट प्रिंसिपल आई थिंक तापस नाइक, तो थैंक्स टू हिम एंड ऑफ कोर्स दी OCPA टीम एंड SCRT टीम। तो आगे जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है कि ये डिस्ट्रिक्ट एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है कि डाइट्स को फ्रीडम देना जरूरी है फॉर क्रिएशन ऑफ कंटेंट एज वेल एज पब्लिशिंग, एंड डाइट्स को फ्रीडम डिजाइनिंग एंड रोलिंग आउट प्रोग्राम डिजाइनिंग के लिए भी उनको फ्रीडम मिलना जरूरी, बिकॉज ऑलरेडी यू आर वर्किंग इन दैट एरिया। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी प्रोग्राम आज तक जब लॉन्च हुआ है तो पहले प्रोग्राम डिजाइन होता है, उसका कंटेंट का डेवलपमेंट होता है, पब्लिसिटी होती है, बराबर, प्रचार प्रसार होता है, एंड फिर लॉन्च होने के बाद उसका ट्रैकिंग होता है। तो ये सारी चीजें आप लोग ऑलरेडी करते रहेंगे, मैं एज्यूम कर रहा हूँ। बहुत सारे डाइट्स इसमें इन्वॉल्व होते रहे आज तक, बिकॉज डाइट्स क्लोजली SCRT के साथ काम कर रहे थे। तो अभी डिस्ट्रिक्ट्स टू डू प्रोग्राम्स एट देयर लेवल विद डाइट एज द एकेडमिक अथॉरिटी। क्यों ये कॉन्सेप्ट लाया? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोग्राम करना है और डाइट उसकी एकेडमिक अथॉरिटी है, एंड टिल नाउ देयर वाज अ डिपेंडेंस ऑन SCRT फॉर दीक्षा रिलेटेड टास्क। SCRT आपकी नोडल बॉडी है, बिल्कुल काम चलते ही रहेगा, बट दीक्षा रिलेटेड टास्क का डिपेंडेंस निकालने के लिए यू हैव बीन गिवन द इंडिपेंडेंस आपका यूजर आईडी क्रिएट करके। तो इस चीज में आप खुद अभी ये कर सकते हैं, डाइट्स खुद का कंटेंट अपलोड करना, कोर्स बनाना, राइट, माइक्रो लर्निंग पैकेज, माइक्रो इंप्रूवमेंट प्रोग्राम ये बना के उसका आउटरीच करके उसको लॉन्च करके उसका अडॉप्शन स्टेट में बढ़ाना, सॉरी जिले में बढ़ाना। ठीक है, उसका फायदा क्या है इस कॉन्सेप्ट का? इसका फायदा ये है कि इट विल इंक्रीज इन क्रिएटिंग स्पेशलाइज्ड रिसोर्सेस एंड रिसोर्स ग्रुप्स। तो अभी कल को अगर अपर्णा मैडम को कोई एक नया प्रोग्राम लॉन्च करना है दीक्षा पे, एंड शी वांट्स हेल्प ऑफ सम स्पेशलाइज्ड पीपल जिनको दीक्षा का पता है, क्रिएशन, क्यूरेशन, अपलोडिंग, ट्रैकिंग, तो SCRT आप लोगों में से किसी का भी हेल्प ले सकती है, बिकॉज बाय दैट टाइम आप स्पेशलाइज्ड रिसोर्स बन जाओगे। जब आप अलग अलग प्रोग्राम बना के लॉन्च करोगे तो यूल बिकम अ स्पेशल रिसोर्स, जिसका फायदा SCRT को होगा। These resources can provide support to SCRT, बराबर। With diet level independence, it can help in faster rollout. प्रोग्राम का रोल आउट बड़ा फास्ट हो जाता है जब उसका स्केल छोटा हो जाता है, एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, इंडिपेंडेंस होता है उनको अगर दीक्षा में, तो राइट, और इससे क्रिएटिविटी आती है, डिस्ट्रिक्ट्स में आ सकती है। ठीक है, टू डिजाइन प्रोग्राम्स, आई एम सॉरी, दिस इज द बेनिफिट। आपका हो चुका है, ये स्लाइड पे मैं ज्यादा नहीं डालूंगी, इसके लिए ग्रीन टिक है। ऑलरेडी आपका कंटेंट क्रिएटर, रिव्यूअर, मेंटर हो चुका है। पासवर्ड चेंज ऑलरेडी मैंने बता दिया, ऐसे आपको करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है अपर्णा मैडम, फॉर यू टू नो, सभी आपको हेल्प करेगी, बट ये एडिशनल 3 रोल अपने को ऐड करके लेने हैं आपके डाइट्स के लिए। तो ये है प्रोग्राम डिजाइनर, प्रोग्राम मैनेजर, रिपोर्ट व्यूअर। ये MLP के लिए नहीं लगेंगे, माइक्रो लर्निंग पैकेज बनाने के लिए, बट जैसे आपने विद्यामृत महोत्सव किया वैम, और विद्यामृत महोत्सव माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम का पार्ट है, बराबर। तो माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम रोल आउट करने के लिए ये एक्सेस लगता है। ठीक है, तो ये यूजर आईडीज भी आपके डाइट्स के लिए क्रिएट करवा की लेनी है। दिस इज नेक्स्ट स्टेप फॉर SCRT। इसमें डाइट का रोल नहीं है, SCRT का रोल है। दूसरा, अपने को प्रोग्राम प्रेपरेशन शुरू करना, जो भी हम इसके लिए कॉल कर रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड में वही हाईलाइट किया गया, और अपने को अगले हफ्ते ये सब लॉन्च करना है आपके ओडिशा के हर एक जिले में। सो प्लान लॉन्च इन द 4th week of Jan, राइट। तो इसका हम आगे देखेंगे कैसे करना है। सभी, आई होप आई एम ऑडिबल है, मतलब आई एम जस्ट क्विकली चेकिंग कहीं बीच में। हाँ हाँ, और ये ऑडिबल है राकेश। So let us go ahead. The second thing, this is also for both SCRT and the districts,
कि आपको आप अगर कोई एनजीओ के साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं आपके डाइट में, या आप ऑलरेडी एनजीओ के साथ SCRT लेवल पे काम हो रहा है स्टेट में, तो उनको भी एंगेज करना जरूरी है, बिकॉज उनके पास एक्सपर्टीज है अलग अलग एरियाज का, उनके पास लोग हैं जो इसके लिए काम कर सकते हैं और कर रहे हैं, और उनके पास कुछ लोग तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होते हैं, राइट। इसके लिए ये नेक्स्ट स्टेप है, engaging the local ecosystem. Local partner can be engaged to support diet in multiple ways. तो लोकल एनजीओ या पार्टनर का हेल्प किस में ले सकते हैं? प्रोग्राम डिजाइनिंग एक एस्पेक्ट है बड़ा, सो पार्टनर कैन एक्सटेंड हेल्प इन फॉर्म ऑफ रेप्लिकेटिंग एनी ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोग्राम। तो एट द मोमेंट अगर ऐसा कोई एनजीओ है जो बोलता है कि हमने ये प्रोग्राम इस राज्य में ऑलरेडी अच्छी तरह से किया, इसका ये फायदा हुआ, या इस राज्य के इस डिस्ट्रिक्ट में हमने किया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, वो रेप्लिकेशन आपके जिले में हो सकता है। तो प्रोग्राम डिजाइनिंग में दे कैन बी ऑफ हेल्प अगर उनके पास वो तजुर्बा है, ठीक है। दूसरा, प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन में, ठीक है। सो पार्टनर कैन प्रोवाइड ऑल नेसेसरी सपोर्ट टू इंश्योर स्ट्रक्चर्ड एंड फोकस्ड आउटरीच एंड कम्युनिकेशन। क्योंकि प्रोग्राम जब अभी लेट से आप लोगों ने MLP बना दिया, ठीक है, माइक्रो लर्निंग पैकेज स्टूडेंट के लिए बना दिया, कोई एक वीक लर्निंग आउटकम पे, उसका कोर्स बना के बैच क्रिएट किया, स्टार्टिंग डेट लेट से 24 जनवरी, एंड डेट 15 फरवरी। अभी उसका प्रचार प्रसार, आउटरीच एंड पब्लिसिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है एंड यूजर ग्रुप में। तो राइट फ्रॉम स्कूल टू टीचर्स टू पेरेंट्स टू स्टूडेंट्स, है ना, तभी तो स्टूडेंट को पता लगेगा कि मुझे ये कोर्स करना है इस गिवन टाइम पीरियड में, इसका मुझे ये फायदा है। तो वो प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन में भी एनजीओ का सपोर्ट आपको फायदे में आ सकता है, राइट। तो फोकस्ड आउटरीच एंड कम्युनिकेशन थ्रू द प्रोग्राम साइकिल मतलब पूरा जो भी 3 महीने का आपका प्रोग्राम है, 6 कोर्सेज लॉन्च होंगे एग्जाम्पल, वो साइकिल टू इंश्योर अपटेक एंड एडॉप्शन, ठीक है। क्योंकि आपने कितना भी अच्छा कोर्स क्यों ना बना दिया है या प्रोग्राम, अगर उसका यूटिलाइजेशन नहीं होता है तो वो सक्सेसफुल नहीं है, वो फेलियर है, ठीक है। तो उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए आउटरीच बहुत जरूरी होता है। एंड लास्ट, कंटेंट के क्रिएशन में भी आप उनकी मदद ले सकते हैं। द पार्टनर कैन सपोर्ट इन क्रिएशन। और दूसरा, अगर उन्होंने ऑलरेडी कुछ अच्छे वीडियोस क्रिएट किए और कर सकते, तो वो वीडियो आप देख के अप्रूव करके, अगर कुछ फीडबैक है तो क्यूरेट करके फिर आपके आईडी से अपलोड हो सकते हैं, राइट। एंड इवन लेटेस्ट से आपको कोई अच्छा कंटेंट मिला जो इंग्लिश में, लेटेस्ट से जो मराठी में या कन्नड़ में, लेकिन आपको ओरिया में चाहिए, तो ट्रांसलेशन का एफर्ट है उसमें, तो ट्रांसलेशन के लिए एनजीओ या आपका पार्टनर हेल्प कर सकता है। सो दिस इज जस्ट अ गाइडलाइन कि कौन से एरिया में आपका जो लोकल एनजीओ पार्टनर है या स्टेट लेवल का कोई एनजीओ पार्टनर है जो जिले तक जाके हेल्प करने की मंशा रखता है, उससे हम क्या हेल्प ले सकते हैं। इधर तक किसी को कोई सवाल है तो यू कैन आस्क बिफोर आई गो अहेड। कि ये हमने नेक्स्ट स्टेप्स की बात की, ये आपका हो चुका है, आई जस्ट क्विकली गो थ्रू। ये कम्युनिकेशन हो चुका है, ये ऑलरेडी 4 सक्सेस स्टोरीज हो गई है, खुर्दा की एक है। ये कॉन्सेप्ट है आपको फ्रीडम देने का, ये एरियाज में आप लोग काम कर रहे हो, अभी एक्चुअली ऑफिशियली काम करोगे, ये उसके बेनिफिट्स है, यूजर आईडी बन चुके हैं, ये नेक्स्ट स्टेप्स है जो SCRT करेगा। एंड दिस इज व्हाट वी वर डिस्कसिंग। कोई सवाल यहाँ तक है तो पूछ लीजिए। या इवन अपर्णा मैडम या लिपिका मैडम को सवाल है तो मैडम बिल्कुल पूछ सकते हैं इफ देयर इज एनी क्वेश्चन। हाँ, राकेश जी, जो भाम के अंडर जो सारे इनोवेटिव पेडागोजी डिस्ट्रिक्ट में आया है, इसी को डाइट सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए भद्रक डिस्ट्रिक्ट में more than 1000 प्रोजेक्ट अपलोडेड है। मैडम आपका सवाल स्पेसिफिकली विद्यामृत महोत्सव से रिलेटेड है ना, तो उसका जवाब हम आपको बाद में पर्सनली दे सकते हैं, बिकॉज वो प्रोजेक्ट ही अलग है, क्योंकि उसका डेडलाइन आपका शायद 10 था या 16 था।
तो कैसे वीडियोस का Okay. सिलेक्शन होगा, स्टेट सिलेक्ट करेगी उनकी कमिटी से, स्टेट से सेंटर को जाएगा, वो थोड़ा अलग प्रोग्राम है, उस पर हम कर सकते हैं, विल गिव यू द हेल्प। बट यहाँ तक जो भी डिस्कस किया उसमें कुछ सवाल है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज आई एम गोइंग अहेड। तो आप सब लोगों को सिर्फ मतलब ये जानकारी होगी, बट वापस हम हाईलाइट कर रहे हैं कि दीक्षा में क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या हो सकता है। तो आप कोर्स क्रिएट कर सकते हो दीक्षा में, ठीक है, क्रिएशन ऑफ कोर्सेस। प्रैक्टिस रिसोर्स क्रिएट हो सकते हैं। प्रैक्टिस रिसोर्स का मतलब है कि मैंने 15 सवाल का प्रैक्टिस रिसोर्स बनाना है। हर सवाल में जब मैं स्टूडेंट हूं, मैं जवाब देता हूँ एमसीक्यू में, तो मुझे इमीडिएटली पता लगता है कि मेरा जवाब सही है कि गलत है, और मैं सही जवाब जान सकता हूँ क्लिक करके। दैट इज प्रैक्टिस रिसोर्स, वो क्रिएट हो सकता है। इट हेल्प्स इन बच्चों को ये कि मेरी पढ़ाई कितनी अच्छी हुई है वो समझने के लिए प्रैक्टिस रिसोर्स बहुत पावरफुल रिसोर्स है। असेसमेंट भी आप बना सकते हो, जैसे 20 मार्क का असेसमेंट, तो मैं जॉब देते जाऊंगा और एंड में मुझे पता चलेगा कि मुझे 20 में से कितने राइट मिले। दैट इज असेसमेंट। एंड ये आपने ऑलरेडी किया सर्विस एंड ऑब्जर्वेशंस, या इसमें ही आता है प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम, जिसका माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में रिफ्लेक्शन आता है। तो ये पॉसिबिलिटीज है दीक्षा पे। तो एट द मोमेंट हम मोर और लेस इस पे फोकस करेंगे, ये पहले दो वाले, बिकॉज ये बहुत आसान है, ठीक है। और जो हम आपका जो पहला प्रोग्राम अपने को लॉन्च करना है उसके लिए यूज करेंगे, बिकॉज अपने पास वक्त कम है, अगले 2 हफ्ते में हमको लॉन्च करना है। तो दिस विल बी वेरी इजी फॉर यू टू क्रिएट एंड लॉन्च, ठीक है। आगे जाते हैं। तो ये अगर पॉसिबिलिटीज है, तो ये पॉसिबिलिटीज को लेके प्रोग्राम क्या क्या बन सकते हैं, वो अगला स्लाइड है, कि बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए, एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए और पेरेंट्स के लिए अलग अलग प्रोग्राम बना सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले बात करें MLP, माइक्रो लर्निंग पैकेज, ठीक। तो ये स्टूडेंट्स के लिए माइक्रो लर्निंग पैकेज हम बना सकते हैं इसके ऊपर, जिसमें आपको कोई भी नया कंटेंट बनाना नहीं है। इवन ये जो प्रोग्राम लॉन्च हम करने वाले हैं, आप लोग हर एक जिले, तो आपको कोई नया कंटेंट बनाना नहीं है। एग्जिस्टिंग कंटेंट जो दीक्षा ओडिशा में ऑलरेडी है, उसी को लेके उसको पैकेज में कन्वर्ट करके लॉन्च करना है। तो स्टूडेंट्स के लिए क्या प्रोग्राम हो सकते हैं, आपकी जानकारी के लिए हाईलाइट हो रहा है। स्टूडेंट के लिए MLP जो हार्ड स्पॉट्स है या वीक एलोज है उसके ऊपर, या टॉपिक या चैप्टर वाइज प्रैक्टिस टेस्ट जो हमने अभी बात की, बराबर। आपको छोटे छोटे प्रैक्टिस टेस्ट रिलीज करने, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, वट वो हो सकते हैं। अगर कोई ECC अर्ली चाइल्डहुड केयर के लिए कोई वीडियोस है जो आपको लगता है बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं, दैट यू कैन रिलीज एज अ कोर्स। या तो अभी आपकी फाइनल एग्जाम नजदीक आ रही है, बराबर, फरवरी में, मार्च में, उसको देखते हुए आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स और चैप्टर्स पे अगर कोई रिवीजन पैक बना के रिलीज करना है तो भी हो सकता है, ठीक है। ये स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है। टीचर्स के लिए, टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट मतलब TPD के कोर्सेज लॉन्च हो सकते हैं। तो ऑलरेडी काफी सारे कोर्सेज हिंदी में, अंग्रेजी में, अलग अलग भाषा में दीक्षा में है। उसमें से कोई अगर आपको लगता है आपको यूज करके आपके जिले के लिए, के टीचर्स के लिए रोल आउट करना है, वो भी कर सकते हो। रेडीमेड अवेलेबल है हिंदी, इंग्लिश और बाकी भाषा में। मे बी ओरिया में भी हो सकता है, बट वो आपको चेक करना पड़ेगा। तीसरा, लर्निंग आउटकम या टॉपिक बेस्ड MLP। यहाँ पर हमने MLP की बात की स्टूडेंट के लिए, छोटे छोटे माइक्रो लर्निंग पैकेज बच्चों के लिए, बट सेम छोटे माइक्रो लर्निंग पैकेज एट कोर्सेस टीचर्स के लिए भी जरूरी होते हैं। कि अगर NAS का सर्वे कहता है कि सर्कल्स एंड ट्रायंगल्स जो लर्निंग आउटकम है, उसमें मेरा जिला 28% पे है, मतलब एवरेज परफॉर्मेंस है 28% मार्क्स। तो इसका मतलब ये भी होता है कि शायद टीचर को भी रेमेडिएट करने की जरूरत है कि ये टॉपिक इफेक्टिवली कैसे डिलीवर किया जाए क्लासरूम में, ठीक है। तो इसके लिए टीचर्स के लिए MLP। और ये जो है FLN पैक, ये खोरदा ने लॉन्च किया, ओके। ये भी रेडीमेड वीडियोस है, वीडियो ऑलरेडी दीक्षा पर है, जिस वीडियोस को कहते हैं टिक टैक लर्न की वीडियो, टिक टैक लर्न। ये इनिशियल ईयर्स के बच्चों के लिए बनाए हैं,
बहुत अच्छा ऑडियो विजुअल वीडियोस है, वो वीडियोस का एक कोर्स बना के टीचर के लिए लॉन्च किया, क्योंकि मैं अगर वो पहली या दूसरी कक्षा का टीचर हूँ और मुझे पता नहीं कि ये अच्छे वीडियोस बच्चों के लिए क्या है, तो पहले मुझे समझना जरूरी कि वीडियो क्या है, वीडियो में कंटेंट क्या है, कैसा है, और उसको देख के हुए मैं टीएलएम क्या बना सकती हूँ। इसके लिए वो एफएलएन पैक टीचर्स के लिए लॉन्च किया खुर्दा ने। सिमिलरली एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए भी आप कोर्सेज बना के लॉन्च कर सकते हो, सीआरसी बीआरसी के लिए या अलग लेवल्स के लिए, कि अगर उनके जॉब प्रोफाइल में जो भी गवर्नेंस के टास्क है, या आपका स्टेट का कोई पोर्टल है जिसमें उनको ये टास्क करने पड़ते हैं, तो उसके लिए उनको एक कोर्स, राइट, या तो पोस्ट कोविड कुछ प्रोटोकॉल्स बदल गए हैं, उसके लिए कुछ अवेयरनेस के लिए कोई कोर्स, ये सब छोटे छोटे कोर्सेज हो सकते हैं जो दीक्षा पर रिलीज होंगे। सेकेंडरी माइक्रो इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में उनका कुछ रोल है, तो उसके लिए उनका एक कोर्स हो सकता है। और एंड में पेरेंट्स भी एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कड़ी है हमारे पूरे चेन की, बिकॉज दे आर क्लोजेस्ट टू द चाइल्ड। तो बच्चों का रिवीजन कैसा ले सकते हैं, कोर्सेज ऑन होम रिवीजन, हाउ टू टेक केयर ऑफ द मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ ऑफ चाइल्ड, बराबर ना, चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड के अलग अलग चीज़ों पे भी कोर्स हो सकता है जो पेरेंट्स के रिलीज हो सकता है। सो बेसिकली ये जो चार आपके स्टेक होल्डर्स है, पर्सोनाज है, स्टूडेंट, टीचर, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड पेरेंट्स, सबके लिए आप कोई ना कोई छोटा कोर्स बना के रिलीज कर सकते हो। ये पॉसिबल प्रोग्राम्स है दीक्षा में, ठीक है। अभी आगे जाते हैं, ठीक है, इसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, ये ऑलरेडी हमने बात की है। तो अभी आते हैं माइक्रो लर्निंग पैकेज फॉर स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, जिसके ऊपर अभी हम बात करेंगे डिटेल में। तो MLP जिसका शॉर्ट फॉर्म है, माइक्रो लर्निंग पैकेज। तो MLP क्या है, लेट अस से ये है आपका साइंस का टेक्स्ट बुक उड़ीसा का, हाँ, लेट अस से फॉर एग्जांपल 6वीं कक्षा, वो टेक्स्ट बुक ऑलरेडी दीक्षा में डिजिटल फॉर्म में है, सारे चैप्टर्स डिजिटली ऐड किए, उसमें डिजिटल रिसोर्सेस है, वीडियोस है, PDF है, इंटरैक्टिव रिसोर्सेज जैसे असेसमेंट या प्रैक्टिस रिसोर्स, राइट, वो ऑलरेडी है। ये पूरा आपका टेबल ऑफ कंटेंट TOC दीक्षा में है, राइट। अभी एग्जाम्पल, आपको कोई एक लर्निंग आउटकम है जो आपको पता है कि बहुत वीक है मेरे जिले में, या तो एक हार्ड स्पॉट है जो ट्रेडिशनली डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए, तो मुझे उस पर बच्चों को कुछ देना है सीखने के लिए, सप्लीमेंटरी लर्निंग के लिए या रिवीजन के लिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, तो मेरा जो एग्जिस्टिंग डिजिटल टेक्स्ट बुक है दीक्षा में, उसमें से मैं वो हार्ड स्पॉट बोलो, वीक लर्निंग आउटकम बोलो, या कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बोलो, वो अगर है, एग्जाम्पल कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, एक एग्जाम्पल लेते, ठीक है, तो वो चैप्टर मैंने ओपन कर दिया दीक्षा में। अभी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ये एक ही चैप्टर इस पूरे टेक्स्ट बुक का है, लेट से 3 या 4 चैप्टर मैं चाहता हूं कि बच्चों को मैं रिलीज करूं फॉर लर्निंग, एज अ सप्लीमेंटल लर्निंग, या एज अ रेमेडिएशन मटेरियल, या एज अ रिवीजन मटेरियल, ठीक है। तो उसको मैं कोर्स में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ये चैप्टर है, उस चैप्टर में एक एक्सप्लेनेशन कॉन्सेप्ट है, सॉरी एक्सप्लेनेशन कंटेंट है जो एक वीडियो है, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन है इंटरेक्टिव, फिर में भी एक PDF है, बराबर। तो इस चैप्टर में अगर लेटेस्ट से 12 ऐसे अलग अलग रिसोर्सेस है, लेकिन आपको लगता है 12 में से 6 ही मुझे रिलीज करने, तो आप उस 6 को ही सिलेक्ट कर सकते हो और वो चैप्टर का कन्वर्जन हो जाएगा कोर्स में। So multiple chapters and topics from existing material in Diksha can be organized into small packages leveraging course solution. Solution है कोर्स, बराबर। तो इसको कहते हैं माइक्रो लर्निंग पैकेज। आप एक स्पेसिफिक चैप्टर को लेके उसको कन्वर्ट करते हो कोर्स में, फिर इस कोर्स में जब कन्वर्ट होता है तब उसका बैच बनता है, जब बैच बनता है तो उसको एक स्टार्ट डेट होती है, एंड डेट होती है। आप चाहे तो उसको सर्टिफिकेट भी दिला सकते हैं, जैसे निष्ठा में आपने कोर्स लिया, स्टार्ट डेट, एंड डेट मैंने कंप्लीट किया, मुझे सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिला, सब हो सकता है।
तो बैच होती है, बैच में स्टार्ट डेट एंड डेट होता है, राइट। तो उसका ट्रैकिंग होता है बेसिकली, कितने लोगों ने एनरोल किया, कितने लोगों ने कंप्लीट किया और कितने लोगों को सर्टिफिकेट मिला। ये तीनों डेटा पॉइंट आपको एज ए डिस्ट्रिक्ट क्रिएटर मेंटर आपको एक्सेस मिलता है, ठीक है। एंड रिपोर्ट योर राइट रोल से भी मिलता है। तो ये उसका फायदा है, कोर्स सॉल्यूशन। तो ये कॉन्सेप्ट है एमएलपी का। तो अभी स्टूडेंट एमएलपी कैसे बनाना, इसका एक ये अप्रोच है। बट इसके पहले इसमें कोई अगर सवाल है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो आई इमीडिएटली मूव अहेड कि माइक्रो लर्निंग पैकेज में वापस ये हाईलाइट करता हूँ कि एमएलपी मतलब एग्जिस्टिंग कंटेंट जो दीक्षा में है, दीक्षा उड़ीसा, वो आप लोगे 1 2 3 4 चैप्टर्स, उसको आप कन्वर्ट करोगे कोर्स में, ठीक है, और वो कोर्स करके रिलीज हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड एमएलपी। फाइन। तो स्टूडेंट एमएलपी के लिए अप्रोच क्या हो सकता है? तो जैसे एक फंडामेंटल बेसिस ये है एमएलपी का, लेट अस से कि अभी नैस का ऑलरेडी रिपोर्ट पब्लिश हुआ है, सारे डैट्स को पता होगा, बराबर। अभी मई महीने में नैस का रिपोर्ट पब्लिश हो गया, मई जून में। तो उसके नैस की रिपोर्ट में ऑलरेडी आपको पता लगेगा कि ऐसे कौन से लर्निंग आउटकम्स है जो पूरे के पूरे ओडिशा के लिए वीक है या तो मेरे जिले के लिए वीक है। तो यू कैन सिलेक्ट, चलो 5 नहीं, टू स्टार्ट विथ यू कैन सिलेक्ट ओनली 2 लर्निंग आउटकम्स। हाँ, आई एम हाईलाइटिंग 2 लर्निंग आउटकम्स आप सिलेक्ट करोगे। उसके बाद ऑब्वियसली कौन से ग्रेड और सब्जेक्ट के आप सिलेक्ट करोगे, मुझे 6वीं का देखना है, तीसरी 5वीं 8वीं 10वीं जो भी है। तो लेटेस्ट से आपने सोचा कि 6वीं के लिए मुझे करना है और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए मुझे पहला कोर्स, पहला एमएलपी मेरे जिले के लिए लॉन्च करना है। तो वो ग्रेड 6 मैथमेटिक्स या ग्रेड 6 साइंस या ग्रेड 8 साइंस, और उसका 2 बॉटम एलोज मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद तीसरा स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेलेवेंट कंटेंट ऑन दीक्षा। दीक्षा में जाके मुझे वो कंटेंट ढूंढना है जो मेरे स्टेट के टेक्स्ट बुक से उसमें, ठीक है। तो आई थिंक साइमल्टेनियसली मैं दीक्षा ओपन कर रहा हूँ, मतलब आपको इसका रेलेवेंस पता चलेगा। वेट, नया दीक्षा पेज ओपन कर रहा हूँ। मैं एक्सप्लोर दीक्षा में गया, ये मैंने कुछ देर पहले कहा था, ये पॉपअप आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। लेटेस्ट से मैंने टीचर का लिया, ये आपको पता रहेगा, मैं जस्ट दिखा रहा हूँ। यू कैन सिलेक्ट योर बोर्ड, एग्जाम्पल आपका जो भी है, मैं एग्जाम्पल के लिए सिलेक्ट कर रहा हूँ, मीडियम हिंदी क्लास 2। तो अब मैं जा रहा हूँ लॉगिन में। अब मैं लॉगिन बटन पे क्लिक कर रहा हूँ एंड नाउ आई विल ट्राई टू यूज माय क्रेडेंशियल्स। ठीक है, लोड हो रहा है। ठीक है, तो मैं अभी ये मेरा महाराष्ट्र का लॉगिन है। तो एग्जाम्पल अगर मैं कोई एक टेक्स्ट बुक ओपन करता हूँ,
ये आप समझ लीजिए अभी मैं जो तो स्टेप नंबर 1 आप देख लीजिए, मैंने लॉगिन किया विथ माय क्रिएटर आईडी। मेरे पास क्या क्या रोल है मेरे आईडी में यहाँ पर दिखता है। अगर मैं राइट में जाके प्रोफाइल में क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास कंटेंट क्रिएटर का राइट है, क्रिएटर, ठीक है। तो मैं क्रिएटर आईडी से चला गया, फिर मैंने सपोज हाँ, तो ये एक टेक्स्ट बुक है, ये उसका चैप्टर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। ये एग्जिस्टिंग चैप्टर्स है उस टेक्स्ट बुक के। हाँ, नाउ व्हाट आई एम डूइंग, मैं अभी पीपीटी पे जा रहा हूँ। तो पीपीटी में क्या लिखा है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेलेवेंट कंटेंट ऑन दीक्षा। तो मैंने जो भी ग्रेड सिलेक्ट किया है और जो सब्जेक्ट, उसका मैं टेक्स्ट बुक ओपन कर रहा हूँ। तो आप वही ओपन करो, रिलेटेड से आपने साइंस किया उड़ीसा के लिए, तो एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। अभी ये वो चैप्टर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड एज पर योर टेक्स्ट बुक। अब मुझे पता है कि ये जो चैप्टर है स्टोरी टाइम, हाँ, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों को देने के लिए, जहां पर वो वीक एलो कवर हो रहा है। तो ये अगर आपको बटन दिख रहा है कॉपी एज अ कोर्स, जस्ट सी मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन दैट बटन। ओके, जैसे मैं बटन को क्लिक करता हूँ ये चेक बॉक्सेस मुझे मिल जाते हैं। इसको मैं बंद करता हूँ। हर एक चैप्टर के लेफ्ट साइड में ये ऐसा चेक बॉक्स का बटन आ गया, ठीक है। तो अगर मुझे पता है कि चैप्टर में मिल रहा है, मैं देखता हूँ अच्छा इस चैप्टर में 2 कंटेंट है, वो कंटेंट अगर मुझे प्ले करके देखते हैं तो आई कैन सी हियर कि उसमें क्या आ रहा है। बट मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ लेफ्ट में, ठीक है, तो आगे ये बटन क्रिएट पे चला गया। आई जस्ट शो यू, ये मैं बंद कर देता हूँ। अब ये एनेबल नहीं है, डिसेबल हो गया बटन, बराबर, क्योंकि मैंने कोई भी चैप्टर को सिलेक्ट ही नहीं किया। लेट अस से ये वो चैप्टर है जिसको मुझे कोर्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इस चैप्टर में मेरा वो एलो कवर होता है, वीक एलो, ठीक है। वो लोड कर रहा है। सभी, आई होप आई एम एबल टू रीच एंड इट इज easy to understand. It is जैसे easy to understand, but I would request all the diets should please raise your hand, or you can just unmute and आप लोग के पास कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज क्लियर कर लीजिए अभी, because there were many doubts as in like how to stitch a course, how to upload it, how to create it. तो इसलिए मैं सब डायट्स को रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपके डाउट्स यहाँ पे आप क्लियर कर सकते हैं। कोई बात नहीं, सो लेट मी कंप्लीट दिस, लेट अस से। तो मैं वापस जा रहा हूँ। मैंने वो टेक्स्ट बुक ओपन किया, स्टेप नंबर 1, टेक्स्ट बुक ओपन करने के बाद मेरे को ये दिखता है पूरे चैप्टर्स राइट साइड में। मैंने बटन पे क्लिक किया कॉपी एज अ कोर्स, उसके बाद मैंने वो चैप्टर लिया जिसको मेरे को कन्वर्ट करना है कोर्स में, हो गया क्लिक। फिर मैंने क्रिएट बटन पे जाके क्लिक किया, तो देखिए अब क्या होता है, कंटेंट सक्सेसफुली कॉपीड आ गया। और अब यहाँ जाके मुझे ये जो कोई सवाल पूछे गए जहाँ पर रेड एस्ट्रिक्स है, रेड एस्ट्रिक्स का मतलब है ये मैंडेटरी फील्ड्स है, वहां मैं इंफॉर्मेशन डालूंगा और मैं रिव्यू को भेज दूंगा, सेंड फॉर रिव्यू। तो मेरे रिव्यूअर को जाएगा, मतलब जिसके पास रिव्यू राइट्स है। तो मुझे करना क्या है, ये मेरा वो जो चैप्टर है वो कोर्स में कन्वर्ट हो गया, बट उसको पब्लिश करने के लिए मुझे कुछ करना पड़ता है। तो लेटर से मुझे कुछ टाइटल डालना है, तो मैं लिखूंगा MLP, जैसे मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 8, लेटर से मेरा पहला MLP है, MLP 1, लेटर से दिस इज फॉर कोई एक जिले का नाम लेते हैं, सपोज खोरदा, ठीक है, MLP खोरदा।
MLP1 खोर्धा मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 8, ठीक है, क्योंकि आप मल्टीपल MLP बनाओगे, अलग अलग जिले बनाएंगे, तो ये नाम आपको काम में आएगा डिस्कवरी करने में, ठीक है। आगे जाते हैं, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ये तो नॉन मैंडेटरी फील्ड है। कोर्स टाइप ऑलरेडी इसमें आपको ऑप्शन आएगा क्या स्टेट का, तो आप स्टेट का ऑप्शन ले लीजिए। सब्जेक्ट्स, जो भी आपका सब्जेक्ट है, लेट्स से आपका सब्जेक्ट है क्या केमिस्ट्री व्हाटएवर। ऑडियंस टाइप स्टूडेंट, आप ये बाय डिफॉल्ट आपको उड़ीसा मिलेगा, जो मुझे महाराष्ट्र मिल रहा है। मीडियम ओरिया है, हिंदी है, इंग्लिश है, आप सिलेक्ट करोगे। क्लास, कौन से क्लास के लिए, लेटेस्ट 8 इज फॉर 8, आपने 8 सिलेक्ट किया। वापस इधर सब्जेक्ट फॉर द ऑडियंस सिलेक्ट करना पड़ता है, लेट से हमने इंग्लिश लिया। अब ये ऑथर जो है ना, दिस ऑथर एंड एट्रीब्यूशंस, इसका मतलब आप समझ लीजिए क्या है। पहले तो कॉपीराइट डालोगे आप 2023, ये समझ लेना, क्योंकि ये अभी आप जनरेट कर रहे हो जैन 2023 में, तो कॉपीराइट का ईयर 2023। कॉपीराइट, ओके, इसमें आप डालोगे लेटर से ये खोर्धा के लिए बना रहे, तो डायरेक्ट खोर्धा, क्योंकि आपने क्रिएट किया है, ठीक है। आपने कहीं से तो कॉपी किया ना, भले ही आपने उसको क्रिएट किया, उसमें कुछ एक चीजें डाली या कुछ निकाली, इसके लिए ओनर आप है, लेकिन आप किसी से लिए, तो एट्रीब्यूशन का मतलब है आप उस डिपार्टमेंट को, व्यक्ति को या स्टेट को, बोर्ड को क्रेडिट दे रहे हो। तो एट्रीब्यूशन कैन बी लेटेस्ट से CRT ओडिशा, सॉरी, ऑथर कैन बी लेटेस्ट सेम दैट। ये कर दिया, फिर आपने यहाँ पर अगर कुछ इमेज डालना है तो इमेज डाल दीजिए। एग्जिस्टिंग इमेज आपको कोई उठाना है, लेटेस्ट से कुछ है क्या इसमें उड़ीसा के नाम से, लेटेस्ट से कुछ भी आपको अगर इमेज उठाना है जो ऑलरेडी है, तो आप उठा सकते हो, नहीं तो माई इमेजेस मतलब आप आपके कंप्यूटर से वो इमेज अपलोड करोगे। हाँ, आपको कुछ अगर इमेज अपलोड करना है, ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ ले लेते हैं इमेज, जैसे मैंने ये इमेज उठाया, तो ये उसका आइकन हो गया, वो दिखता है। एंड फिर मैं यहाँ पे जाऊंगा, इफ यू वांट टू चेक दिस वंस, ये कंटेंट क्या आप देख सकते हो, एंड फ्रॉम हियर यू कैन सेंड फॉर रिव्यू। मैं सेंड नहीं कर रहा हूँ, तो जैसे आप ये सेंड फॉर रिव्यू करोगे, तो अगर कुछ यहाँ पर आपने कुछ पेंडिंग चीजें रखी है, नहीं डाला है, तो पूछेगा प्लीज जो भी चेक दिस चेक दैट, अदरवाइज इट विल से कंटेंट सेंड फॉर रिव्यू। फाइन, दिस इज हाउ यू क्रिएट। और जब वो रिव्यूअर उसको एक्सेस करेगा, देन ही विल अप्रूव दिस कंटेंट। वंस इट इज अप्रूव्ड, इट गोज इनटू लाइव। तो यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। Athira, and where can let us also show them the help center. Yes. So let me, All the doubts for the creation, uploading, how to stitch a course, and how to review a course, publishing a course, creating a batch, everything is very clearly given in the help center with videos as well. So Rakesh, you can just show. Can you go back to initially accessing the help center? wait. So should I click here? No, go to the home no. page. I'll go to help. No, just go to Diksha, the first explore page. And down, right? Yeah, Athira. So इसमें कुछ सवाल है। अब तक हमने ये जो देखा कि कैसे एक चैप्टर को कोर्स में कन्वर्ट करते हैं, तो आपने ये सेंड फॉर रिव्यू भेज जैसे क्लिक करते हो, वो सेंड हो जाता है रिव्यूअर आईडी से, फिर उसको
पब्लिश हो जाता है और उसके बाद उसका बैच क्रिएट होता है। Akhil, are you there? Yeah, Who I died? think there was some problem with my laptop. I've joined from my phone. Yeah, I can see the screen. So anyway, I'm first asking them, इसमें कुछ सवाल है क्या? तो किसी एक ने आई थिंक हाथ उठाया था। आप एक काम कीजिए ना, आप उस पर हैंड रेज कीजिए। वहां पर जो हैंड रेज का ऑप्शन है ना, जिससे मैं अभी यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, देखिए मेरे अगेंस्ट हैंड रेज हो गया। माहिती तो हमारा डाटा और ये देखिए हैंड रेज दिख रहा है, मेरे नाम के अगेंस्ट Who हैंड रेज। died? ପଚାରିବେ ପଚାର। ଦିଅ ତ। अगर किसी को सवाल पूछना है तो हैंड केंद्रा रेज पड़े। कीजिए डिजिटली। नीचे आप जाके ये देखिए, ये हैंड का बटन इधर दिया है, इसको आप क्लिक करोगे तो हैंड रेज हो जाएगा। नहीं तो मल्टीपल लोग अनम्यूट करेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, लगता है मोर और लेस सर सबको। नमस्कार सर। बोलिए बोलिए। हेलो राकेश सर। हाँ बोलिए बोलिए। एक्चुअली जो आप जो दिखा है कि कंटेंट को जैसे क्रिएट किया जाता है, आप दिखा है, तो उस कंटेंट को यदि मैं मतलब जो एग्जिस्टिंग कंटेंट है उसको हमारे डिजिटल लैंग्वेज में हम कन्वर्ट करके अपलोड कर क्रिएट करेंगे तो? नहीं तो ये जो एग्जाम्पल है ना, इसमें आप क्या कर रहे हो, आपका ओरिया कंटेंट जो ओरिया लैंग्वेज में है, ओरिया टेक्स्ट बुक्स, उसका ही चैप्टर निकाल रहे हो, तो ओरिया में ही है। आप समझ गए? सर थोड़ा सा ब्रेकिंग हो रहा है आपका वॉइस सर। अच्छा, मेरा आवाज आ रहा है क्या सभिया, कि ब्रेक हो रहा है? Rakesh, your voice is breaking. Speech. ठीक है, मैं थोड़ा जोर से बात करता हूँ। प्रियव्रता जी, आवाज आ रहा है क्या? सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा है सर। ठीक है, अभी आ रहा है? मैंने मोबाइल से ये किया। Yes, you are audible, Rakesh. अभी आवाज आ रहा है? अभी आवाज आ रहा है मेरा? हाँ हाँ राकेश Rakesh, your voice is. Yes, सभिया, टेल मी। Your voice is audible, Rakesh. हाँ, तो मैं प्रियव्रता को ये बोल रहा था, प्रियव्रता जी, आप इसमें क्या करोगे, आपका जो ओडिशा का टेक्स्ट बुक्स है, ठीक है, जो ओडिया लैंग्वेज में, उसका ही चैप्टर आप निकाल के उसको कोर्स बनाओगे, तो कोई ट्रांसलेशन का एफर्ट नहीं है। डज दैट आंसर प्रियव्रता? आप म्यूट पे, अगर आप कुछ पूछना है तो, प्रियव्रता। ठीक है, तो आई थिंक नेक्स्ट हैंड पीके क्लासेस टीचर एजुकेटर ने रेज किया है। पूछिए आप, पीके क्लासेस। नमस्ते सर, राकेश सर जी, नमस्ते। हाँ नमस्ते सर, मैंने जब मोबाइल पे दीक्षा आप यूज किया तब कंटेंट क्रिएटर का ऑप्शन फंक्शन नहीं कर रहा है। वो मोबाइल ऐप पे नहीं, वेब पोर्टल पे आता है, आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप पे करना पड़ेगा क्रिएशन। जी ठीक। एनीवन एल्स? थैंक यू सर। वेलकम। तो एक चीज आपने देखी होगी कि एक चैप्टर को कोर्स में कन्वर्ट करना कितना आसान है। मतलब उसका नेक्स्ट स्टेप है पब्लिश करना, पब्लिश के बाद बैच बनाना। समझिए टोटल टाइमलाइन 15 मिनट, ऑन द हायर साइड 20 मिनट, चलो क्रिएशन के लिए। बस आपको मैं थोड़ा पीपीटी पे वापस जाता हूँ। तो पीपीटी में ये जो पॉइंट है ना, ये देखिए, ये पॉइंट आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंटेंट ऑन दीक्षा, इसमें ठीक है आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, आधा घंटा,
कि मेरा वीक लर्निंग आउटकम है, जैसे मैंने कहा पेरीमीटर एंड एरिया, लेट से एक और है सर्कल्स एंड ट्राइंगल्स, या तो केमिस्ट्री में है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो भी, तो मुझे उससे पर्टेनिंग वो चैप्टर ढूंढना है टेक्स्ट बुक में जिसमें ये कवर होता है। यहाँ तक तो क्लियर है? somebody कैन क्लैरिफाई विथ मी। राकेश कुमार जी, यहाँ तक क्लियर हो गया फंडा? क्योंकि आप दिख रहे हैं मेरे को, इसके लिए आपको पूछ रहा हूँ मैं। हाँ राकेश जी, यहाँ तक क्लियर। हाँ, तो वो एक छोटा एफर्ट है स्टेप। अच्छा, पीपीटी में हमने जो देखा है स्टूडेंट एमएलपी, आप एक बार पहले 2-3 स्टेप बता सकते हो? पहले हम क्या करेंगे, मतलब मैं एलओ कैसे सिलेक्ट करूं? मैं हूं राकेश कुमार पांडा, मैं कैसे वीक एरिया सिलेक्ट करूं जिसके ऊपर मुझे एमएलपी बनाना है? वो क्या हो सकता है अप्रोच? स्कूल लेवल पे या नहीं, आपको डिस्ट्रिक्ट के लिए लॉन्च करना है ना एमएलपी। जी, आपका जिला कौन सा है? मैं स्टेट में बैठता हूँ, मैं डायरेक्ट में। अच्छा, डाइट में, ओ सो सॉरी। तो मैं फिर गलत व्यक्ति को पूछ रहा हूँ। किसको पूछो? कृष्णा नाथ मैडम, अगर आप सुन रही है। या हु एल्स? डाइट सोनेपुर, आप अनम्यूट कर सकते हो। डाइट सोनेपुर, सोनपुर, whatever the pronunciation is. हाँ, डाइट सोनपुर, नमस्ते। आप अनम्यूट कर दीजिए, म्यूट निकाल दीजिए आपका। डाइट सोनपुर, I don't know. सर म्यूट है। हाँ, अभी अनम्यूट है, तो आप, मैं ये पूछ रहा हूँ आपको, आप वापस म्यूट पे चले गए, आप अनम्यूट रहिए। जी सर। आपका नाम सर, आपका नाम? नवीन कुमार बाग। ठीक है, तो नवीन जी, आपको अब तक जो डिस्कशन किया वो पता चल रहा है ना, समझ में आ रहा है, राइट? आ रहा है सर। तो अभी अगर आपको एक माइक्रो लर्निंग पैकेज बच्चों के लिए रिलीज करना है, सोनपुर के जिले के बच्चों के लिए, तो आप ये कौन सा टॉपिक लोगे, कौन सा टॉपिक या कौन सा लर्निंग आउटकम आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हो? एक वन ऑफ द वेज क्या है? नास का जो लो अचीवमेंट हुआ है उससे हम लेंगे। बिल्कुल सही, परफेक्ट जवाब है। तो जैसे वो आप सिलेक्ट करते हो, आप फिर उसमें, मतलब आप फाइनल कीजिए कि आपको 5वीं 6वीं का करना है, 8वीं का करना है, उसमें से कौन सा सब्जेक्ट, और 2 एलओ आप ले लेंगे। उसके बाद हम बात कर रहे थे कि जब वो एलओ आप सिलेक्ट करते हो, तो उसके बाद आप जब आपके क्रिएटर आईडी से आपका ओडिया टेक्स्ट बुक ओपन करोगे, तो उसमें से वो जो वीक एलओ है वो कौन से चैप्टर में आता है, वो चैप्टर आपको ढूंढना है। उसमें जो टाइम लगेगा 10-15 मिनट, वही एफर्ट है सर। हाँ, जैसे वो चैप्टर मिलेगा, फिर मैंने आपको दिखाया चैप्टर को कन्वर्ट टू कोर्स कैसे करना है, वो देखा आपने सर? हाँ, बस आपने कोर्स को कन्वर्ट किया, आपने रिलीज रिव्यू को भेज दिया, रिव्यूअर आईडी से आपने अप्रूव किया, उसका बैच बना दिया, बस एमएलपी रेडी। बट थैंक्स सर, थैंक्स सो मच। मतलब आप सुन रहे थे, आपको सब समझ में आ गया, थैंक्स सो मच। तो और किसी को इसमें कुछ सवाल है तो बिल्कुल पूछ लेना। जैसे किसने डाइट जजपुर, अगर आपको कुछ सवाल है तो पूछिए। या डाइट बालंगीर दिख रहा है, आई होप आपको समझ में आ गया। डाइट बालंगीर, हाँ सर, समझ में आ गया सर।
तो आपको ये आज तारीख है 10 जनवरी, आपको अगले हफ्ते मतलब आज क्या है मंगलवार, तो ये जो सोमवार आएगा उस हफ्ते में आपको लॉन्च करना है एक MLP फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये कैसे करना है इसी की हम बात कर रहे हैं। फिर भी अगर आपको कुछ सवाल है तो सभी व्हाट वी कैन आल्सो डू ना, हम एक व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं फॉर पीपल टू आस्क क्वेश्चंस, राइट, एंड वी कैन आंसर देम। Okay, with all the diets and this diets coordinator. हाँ, one diet coordinator who is doing this coordination, अपर्णा मैडम, लिपिका मैडम, यू, मी, हम उसमें रहेंगे। ठीक है, fine. So I'm moving ahead. So Yeah, Athira, what I'm now doing is, so let me complete this. I think there's an echo, and then we can come to the help center. Should we do that? Because I'll complete this next slide. Yeah, to let's help them do that. understand. So अभी हमने ये 3 पे बात की। NAS लेके हमने ग्रेड, सब्जेक्ट और बॉटम एलो सिलेक्ट किया। दीक्षा में जाके कंटेंट सिलेक्ट किया उस वीक एलो का। मेरे ओरिया के टेक्स्ट बुक में से चौथा मैंने उसके ऊपर MLP क्रिएट किया, जैसे मैंने अभी बताया, कोर्स बना दिया। उसका बैच कैसे बनाते वो छोटी बात है, उसका एक छोटा ट्यूटोरियल भी है, वो ऑनलाइन हम दिखाएंगे। 1 मिनट की बात है बैच बनाना। फिर इसके बाद आप रिलीज करोगे। प्रोग्राम या तो कोर्स रिलीज हो गया। रिलीज होने के बाद आपको ट्रैक करना है कितने बच्चों ने लिया, कितनों ने कंप्लीट किया, एनरोल कितनों ने किया, कंप्लीट कितनों ने किया। ठीक है, एंड तो लेट अस गो एट, अब उसका एग्जैक्टली स्टेप्स क्या है वो समझ लेते हैं। तो ये देखिए, ये बहुत ही सरल तरीके से दिखाया कि आप 6 दिन में MLP कैसे लॉन्च कर सकते हो। हाँ, इसके ऊपर आप सबको समझना बहुत जरूरी है क्या है। तो रोल आउट प्लान फॉर स्टूडेंट MLP प्रोग्राम। डे 1 में आपको क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंटेंट ऑन दीक्षा पर्टेनिंग टू लो परफॉर्मेंस, ये अभी हमने देखा। ठीक है, ये अभी हमने देखा एग्जैक्टली। डे 2 मतलब ये डे 2 दिन की बात नहीं, बट फिर भी हमने दिखाया है डे 1 डे 2, ये दोनों एक दिन में हो सकता है। तो उसके बाद आप क्या करोगे, आपको कोर्स बनाओगे, जो अभी हमने दिखाया। कोर्स बनाना मतलब कोर्स स्टिच करना, क्रिएट करना। तो कोर्स स्टिचिंग टू बी कंप्लीटेड फॉर एटलीस्ट 1 एलो। कम से कम हम 2 एलो की बात करें, एक नहीं 2 एलोस पे आप 2 कोर्स बनाइए। ठीक है, डे 2 में ये हो सकता है। फाइन, 1 मिनट मैं लेजर पॉइंटर ले रहा हूँ। हाँ, तो कमिंग बैक, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, अभी ये भी हमने डिस्कस किया कॉपी एज अ कोर्स लेके। अभी तीसरा डे 3 ऊपर लिखा है, दिस इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट प्री लॉन्च स्टेप। दोनों स्टेप्स लॉन्च के पहले ये 2 स्टेप्स आती है, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। डे 3 में आपको क्या करना है, आपको एक ट्रेनिंग या वर्चुअल ओरिएंटेशन आपके जिले का लेना बहुत जरूरी है। मैं आपका एक जिले के, एक क्लस्टर के, एक स्कूल का टीचर हूं, तो आपको ये मुझे बताना जरूरी है कि अगले हफ्ते इस दिन ये माइक्रो लर्निंग पैकेज बच्चों के लिए आप रिलीज कर रहे हो एज अ डिस्ट्रिक्ट डाइट विथ हेल्प फ्रॉम योर एजुकेशन ऑफिसर प्राइमरी, एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी। ओके, आप ये रिलीज कर रहे हो। इसमें टीचर का रोल क्या है, तो टीचर को स्टूडेंट्स को बताना है कि ये है वो लिंक, ये लिंक पे क्लिक करो, दीक्षा के ऐप में जाओ, एनरोल, कंप्लीट करा ना। तो आपको ये ओरिएंटेशन आपके जिले का करना बहुत जरूरी है। भले ही ओरिएंटेशन आधे घंटे का रहेगा, 45 मिनट्स का रहेगा, यू शुड हैव दैट ओरिएंटेशन। तो ये थर्ड स्टेप है। उसके बाद दूसरा स्टेप है, इसके लिए इसमें 1-2 दिन बीच में क्यों दिए, एक दिन आपने ओरिएंटेशन किया, उसके बाद 2 दिन का एक गैप है, 1 दिन का गैप, क्योंकि इसमें जो स्टूडेंट्स है जो इसमें एनरोल करेंगे, इसके लिए वी ऑलवेज सजेस्ट, आप जब पहला वाला MLP रोल आउट करोगे 8वीं या 9वीं के बच्चों के लिए करना, सो दैट वो बच्चे भी बड़े होते हैं, ऑलरेडी दीक्षा यूज किया होता है, यूजर क्रिएशन उनको इट इज नॉट अ चैलेंजिंग टास्क, मतलब उसका सेल्फ रजिस्ट्रेशन।
तो डे 4 एंड डे 5 में आपको स्टूडेंट्स का सेल्फ रजिस्ट्रेशन करके लेना है, स्टूडेंट्स या टीचर्स। अगर टीचर का एमएलपी है तो टीचर होता है, बट अभी हम स्टूडेंट्स की बात करें तो दीक्षा में एक रजिस्ट्रेशन वन टाइम एक्टिविटी होता है, वन टाइम वो करवा के लेना जरूरी है। एक बार वो हो जाता है देन यू ऑफिशियली लॉन्च। तो ऑफिशियल लॉन्च कैसे हो सकता है? फिजिकली भी कर सकते हैं आप, मतलब डाइट में आपके डाइट प्रिंसिपल बैठे हैं, डाइट की सब्जेक्ट फैकल्टी है, या तो डाइट में आपके ईओ भी आ गए, या तो आप जेडपी के ऑफिस में चले गए, वहां पर प्रोग्राम लॉन्च किया, एंड द एंटायर डिस्ट्रिक्ट टीचर्स, सीआरसीज, बीआरसीज एंड टीचर्स आर कनेक्टेड वर्चुअली ऑन जूम या गूगल मीट। ये हो गया लॉन्च। ठीक है, तो उस लॉन्च के लिए आपके पास वो एमएलपी रेडी होना जरूरी है, ये टीचर्स का ओरिएंटेशन होना जरूरी है, एंड स्टूडेंट शुड बी रेडी टू एक्सेस एंड स्टार्ट द कोर्स। तो डे 6 में लॉन्च हो गया। उस दिन के बाद डे 7 से आपको आउटरीच और कम्युनिकेशन करना है टू इंश्योर कोर्स एडॉप्शन। तो आउटरीच कम्युनिकेशन मतलब क्या? तो व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज इज आउटरीच, व्हाट्सएप के माध्यम से एक पोस्टर डालना इज आउटरीच। अगर व्हाट्सएप में आप एज ए डाइट प्रिंसिपल 30 सेकंड का भी वीडियो डालते हो खुद का रिकॉर्ड किया हुआ कि ये कोर्स क्यों करना है, उसके फायदे क्या है, ये आगे ऐसे कोर्स आने वाले हैं XYZ, वो भी एक अपने आप में आउटरीच है। ठीक है, वो आपको करना है 7वें दिन से। और 8वें दिन से आपको ट्रैक करना है एक्सेस कोर्स एडॉप्शन रिपोर्ट। ठीक है, कोर्स एडॉप्शन रिपोर्ट कैसा दिखता है, कहाँ मिलता है, ये सब आपको एसओपी में मिलेगा। हम एसओपी कल रिलीज कर रहे हैं एनसीईआरटी की तरफ से। ठीक है, तो एसओपी में सब कुछ रहने वाला है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं कि आउटरीच के क्या माध्यम हो सकते हैं, ये रिपोर्ट कहाँ मिलेगा, बट ये 8वें दिन से आपको ये करना है। तो ये सिंपल प्रोसेस है लॉन्च, मतलब प्री लॉन्च, लॉन्च, पोस्ट लॉन्च इसकी। अभी इसमें आप बताइए किसी को कुछ सवाल है क्या? ये बहुत सिंपल स्टेप्स। सो अगेन आई विल एक्सपेक्ट रिक्वेस्ट पीपल टू रेज digital hand, and in the meantime, Athira, now I can go to this section if you are able to hear me. Yeah, I can hear you, Rakesh. So what I'll do Rakesh, is I will, let's show them how to navigate from this page, okay? yeah, so this is the Yeah. first screen. Correct. So now, first thing is to click on Explore Diksha. Correct. And then you go to the drop down under the profile menu, right side. This one. No, the profile menu, where the G is there. Yeah, and then help. Yeah, go down to the bottom, extreme bottom, and then go to Help Center. Okay, so this is the help center. Yeah, click on Help Center. Go to Help Center. So सब एक बार देख लीजिए, हेल्प सेंटर यहाँ पर है। तो मैं दीक्षा से एक्सप्लोर दीक्षा में गया, ये लॉगिन बटन पे आया, लॉगिन में हेल्प बटन और हेल्प के नीचे हेल्प सेंटर, तो मैं स्क्रीन पे आ गया। And then go to courses. So कोर्स, The- ये देखिए the कोर्स का top बटन, one. अच्छा कोर्सेस, The ठीक main है। one. Yeah, so here we have everything. You can see course, content creation. Rakesh, you can carry on. हाँ, ये है कोर्स मटेरियल क्रिएशन, कोर्स क्रिएशन, बैच मैनेजमेंट। ये देखिए बैच क्रिएशन, आपको स्क्रीन दिख रहा है तो मैं ये वीडियो ऑन कर रहा हूँ, बैच क्रिएशन का वीडियो। And after for each the download button, you can download and share with other users as well. Correct. So step 2, step 3, step 4, step 5, 45 सेकंड का ये छोटा ट्यूटोरियल है।
ठीक है, it is as simple as this batch creation. Rakesh, can you go to the video part? Which one? The video. You just access the video, right? Yeah. Yeah. So you can see a download button right side. Oh yes. Yeah. So download करके share हो सकता है ये. So even this can be utilized Aparna madam या तो district diets themselves. So I'm going here. कोई एक डाइट हैंड रेस करके पूछिए, इसमें कुछ सवाल है क्या? Sabia, do you think it is clear? राकेश, नमस्ते राकेश सर. हेलो. बोलिए. हाँ जी, और एक बार बैच क्रिएशन का वीडियो और एक बार दिखाएंगे? बैच हाँ जी. ठीक है, ये ऑलरेडी आप भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं दिखा देता हूँ. ये देखिए, मैं आपको स्टेप ही दिखा देता हूँ, मतलब आप वहां तक जाना कैसे. ये तो आपको पता है ना, diksha.gov.in, ये तो पता है, राइट? हाँ जी. हाँ, तो ये यहाँ पर जाने के बाद स्टेप नंबर 2, एक्सप्लोर दीक्षा, लाल वाला बटन पे क्लिक करना है. तीसरी स्टेप है ये टॉप राइट का, ये जो लॉगिन का बटन आता है टॉप राइट जी. चौथी स्टेप है हेल्प, फिर नीचे स्क्रॉल करना है. पांचवी स्टेप है गो टू हेल्प सेंटर. छठवा है यू कैन गो टू कोर्सेस में बैच मैनेजमेंट. सातवीं स्टेप, बैच मैनेजमेंट में आप जाओगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा. ठीक है, स्टेप्स. हाँ सर. फाइन. और कोई हैंड रेज कर सकता है अगर सवाल है तो, बिकॉज अपने पास 10 मिनट बचे, तो उसमें और कुछ सवाल लेना है तो ले सकते. इन द मीन टाइम I will generally move ahead with this PPT, but आप फिर भी सवाल पूछ सकते हो, दिक्कत नहीं है. हाँ राकेश जी. हाँ बोलिए. हाँ, ये तो जो कोर्स है हम दूसरे के कोर्स को स्टिक करके हम इफ अगर कोई डाइट मतलब खुद का कुछ कोर्स डिजाइन करना चाहे और उसको अपलोड करके आगे कोर्स बनाना चाहे, तो उसका प्रोसेस अगर थोड़ा बता पाएंगे तो भी हेल्पफुल कर दें. बिल्कुल, मतलब वो तो आपको आज नहीं तो कल करना ही है. तो उसमें आपको बेसिकली कंटेंट क्रिएट, लेटेस्ट से कोर्स बनाना मतलब क्या है, आप एक कंटेंट क्रिएट करोगे ना. एक वीडियो मैंने बना दिया, ठीक है, तो वीडियो आपने बना दिया या तो पावर पॉइंट बना दिया जिसको आपने पीडीएफ में कन्वर्ट किया. ये पावर पॉइंट को आपने वॉइस ओवर दे दिया, तो ये रिसोर्सेस आपने बना के लैपटॉप पे रख दिए. ये स्टेप नंबर 1 है. ठीक है, इज इट फाइन? यस. आपने लैपटॉप पे रिसोर्स बना के रखने के बाद फिर उसका अपलोडिंग आता है. एक रिसोर्स मैंने अपलोड किया, उस रिसोर्स को लिया, कोर्स में स्टिच किया फोल्डर के, और उसको मैंने कोर्स को पब्लिश कर दिया. तो अगर मेरे को एकदम 30 सेकंड में आपको कुछ दिखाना है, तो मैं अगर दीक्षा में जाता हूं, तो ये ऑलरेडी मेरा लॉगिन है एज अ क्रिएटर. ऑलरेडी आई हैव लॉग्ड इन एज अ क्रिएटर, यू नो ना. यस. जब आप जाते हो राइट साइड में, तो ये जो नीचे दिख रहा है आपको वर्क स्पेस, यहां से सब क्रिएशन होता है. वर्क स्पेस, तो वर्क स्पेस में आपको सामने क्या दिख रहा है, ये बुक वगैरह छोड़ दीजिए, कोर्स बनाना. बट कोर्स बनाने के पहले आपको कंटेंट अपलोड करना पड़ता है. कंटेंट, कंटेंट अपलोड कीजिए. या तो आपको प्रैक्टिस रिसोर्स बनाना है, वो प्रैक्टिस रिसोर्स बना दीजिए. आपको असेसमेंट बनाना है, असेसमेंट बना दीजिए.
ये तीनों चीजें लेके आप उसको कोर्स में स्टिच करते हो। तो ये यहाँ से सब बनता है। और उसका प्रोसेस, जैसे अथिरा ने कहा, यू कैन गो थ्रू दिस ट्यूटोरियल्स, उसमें सब कुछ दिया है कोर्सेस में। कोर कंटेंट क्रिएशन, कोर्स क्रिएशन, सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, सब कुछ इंक्लूडिंग, लेट्स से अगर मैं कोर्स क्रिएशन जाता हूँ, ऐड कोर्स मटेरियल, हाउ टू रिव्यू एंड पब्लिश कोर्स, सब कुछ है। Rakesh, just click on course material creation. Course up on top. Course material, this one. Yes. Everything is here. Upload content, review and publish that content. Creating. So everything you need is in the head center about course. Each and every minute step. बिल्कुल। सो रिसोर्स, क्रिएट रिसोर्स कैसा क्रिएट करे, उसका 1 मिनट 34 सेकंड का वीडियो है। एडिंग डिटेल्स टू रिसोर्स, वो सब मतलब स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिया है। ये आपको एम्पावर करने के लिए, मतलब सेल्फ सर्विस के हिसाब से, ठीक है। तो एग्जांपल, अगर क्रिएटिंग रिसोर्स 1 मिनट 34 सेकंड की वीडियो में आपको पता लग जाएगा। जो मैंने आपको अभी वर्कस्पेस ओपन किया था, ये वही वर्कस्पेस है। देखिए, स्टेप नंबर 1 क्रिएट पे क्लिक करो, स्टेप नंबर 2 रिसोर्स पे क्लिक करो, स्टेप नंबर 3 नाम डालो, आपको रिसोर्स का क्या नाम डालना है, कंटेंट टाइप सिलेक्ट करो, बोर्ड आपका ओरिया बोर्ड है, मीडियम ओरिया, ग्रेड 8वीं, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। स्टार्ट क्रिएटिंग पे आपने क्लिक किया बटन पे, फिर ये विंडो सामने आएगा, फिर आपको क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करना है। हाँ, तो बेसिकली ये ऐसे छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स बना के रखे। ये हेल्प सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबको समझना, क्योंकि ये आपके लिए एक ट्रेनिंग रिसोर्स है हर चीज का। ओके। तो मैं वापस जा रहा हूँ। और किसी को सवाल है तो हैंड रेज कीजिए। मैं एक और चीज हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पर, मतलब मैं चेक कर रहा हूँ कि किन किन को पता है। मैं एक्चुअली अभी इससे लॉग ऑफ कर रहा हूँ, तो अगर वर्कस्पेस रिलेटेड कुछ सवाल है तो पूछ लीजिए। Aparna madam, I hope the session is on track and it has been helpful. Yes. तो मैं अभी लॉग आउट कर रहा हूँ। हाँ, मैंने लॉग आउट कर दिया। अभी मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, मतलब एज ए जनरल यूजर। तो वापस एक्सप्लोर दीक्षा, लेफ्ट साइड का बटन, और मैं लॉगिन पे चला गया। अभी ये मैं क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पीपीटी में एक स्टेप डाली है हमने। ये स्टेप अगर आप सबको दिख रहा है, स्टेप नंबर ये डे 4 और 5 में जो दिखा है, सेल्फ रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स, सेल्फ रजिस्ट्रेशन, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको पता रहेगा बट मैं फिर भी दिखा रहा हूँ। अगर आपको लगता है इस 4 स्टेप्स के ऊपर कोई आपको ओरिया में वीडियो बनाना है, बिल्कुल बना लीजिए। वैसे जरूरत नहीं है बट बता रहा हूँ आपको। देखिए, अगर मैं पहली बार आ रहा हूँ इस ऐप में, ये सेम एक्सपीरियंस मोबाइल ऐप में भी है। अभी मैं भले ही पोर्टल पे दिखा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर चला गया, थोड़ा मैंने जूम इन किया है। ये आपको दिख रहा है रजिस्टर हियर, या मतलब मेरे पास ऑप्शन क्या है सेल्फ रजिस्ट्रेशन के? 2 ऑप्शन। या तो मेरे पास जीमेल का आईडी है, वो मैंने यूज किया, मेरा जीमेल आईडी मेरा यूजनेम बन जाता है, मेरा जीमेल का पासवर्ड बन जाता है, कोई क्रिएशन की जरूरत नहीं। लेकिन अगर मेरे पास जीमेल आईडी नहीं है, या तो मेरे को कुछ दूसरा ईमेल आईडी यूज करना है, या तो मोबाइल नंबर यूज करना है, देन मैं जाता हूँ रजिस्टर हियर में। अब देखिए कितने स्टेप का ये सेल्फ रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। आई एम अज्यूमिंग ये आपको पता रहेगा बिकॉज आप दीक्षा यूज कर रहे हो, बट फिर भी इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी टू हाईलाइट।
यहाँ पर आपको लेटर से XYZ आपने आपका नाम डाल दिया, सिर्फ आपको ईयर ऑफ बर्थ डालना पड़ता है। ईयर, पूरा डेट ऑफ बर्थ मांगता भी नहीं है। ईयर पूछने के पीछे का मकसद है सिस्टम को ये जानना है कि ये जो यूजर आ रहा है वो मेजर है कि माइनर है, 18 साल के ऊपर है कि 18 साल से कम है। ठीक है, तो लेटर से मैंने डाल दिया यहाँ पर 2008। ठीक है, कंटिन्यू। ये देखिए, तो ये वो फॉर्म है। फॉर्म में कितने फील्ड्स है? या तो आप मोबाइल नंबर यूज कीजिए और यूजर आईडी क्रिएट कीजिए अपना एज ए जनरल यूजर, या तो ईमेल। ईमेल कोई भी हो सकता है, याहू, रेडिफ, व्हाटएवर। तो अगर मुझे मोबाइल नंबर चाहिए तो मैंने मोबाइल नंबर डाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, उसके बाद मुझे ओटीपी आता है। ठीक है, मतलब मैं आपको पासवर्ड डालता हूँ, बट व्हेन आई कंटिन्यू, लेट अस से ये मैं कुछ पासवर्ड बना के डाल दिया। अभी ये मोबाइल नंबर मैंने ऐसे ही डाला, तो उसके बाद जब आप नेक्स्ट करते हो तो आपको ओटीपी आता है इस मोबाइल पे। सॉरी, मेरा लैपटॉप का इंटरनेट चला गया, बट आई होप आई एम ऑडिबल फ्रॉम माय मोबाइल। Yes, audible, सॉरी, but screen is not स्क्रीन नहीं दिख रहा है ना, बट ठीक है, आपको वो जो स्क्रीन दिख रहा था उसमें सिंपल है, या तो मोबाइल नंबर या तो कोई भी ईमेल आईडी यूज करके वो यूजर खुद का यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट कर सकता है एज अ टू एक्सेस दीक्षा के कोर्स को एक्सेस करने के लिए यूजर नेम पासवर्ड लगता है, जो वन टाइम एक्टिविटी है, वन टाइम, एक ही बार। मेरा जो मोबाइल नंबर है मेरे पेरेंट का मैं डाल दूंगा, पासवर्ड क्रिएट करूंगा, कंटिन्यू करूंगा, ओटीपी आता है, ओटीपी डालूंगा, आई विल क्रिएट माई पासवर्ड, दैट्स इट। तो वो मोबाइल नंबर मेरा यूजर नेम बन गया और जो पासवर्ड मैंने डाला वो मेरा पासवर्ड बन गया। अगर मेरे पास गूगल का जीमेल आईडी है तो आपको पता चला ना कि आपको कौन सा ऑप्शन लेना है। इसके पहले जो मैंने दिखा है साइन इन विद गूगल, दैट्स इट, वो आपको लेना है। सो ये स्टेप मैंने क्यों हाईलाइट किया, बिकॉज यू ऑल्सो हैव टू गेट दिस डन, यू मीनिंग नॉट यू, योर टीचर्स हैव टू गेट दिस डन फॉर देयर स्टूडेंट्स। सो इसके लिए व्हाट्सएप पे वो आउटरीच होना जरूरी है। फाइन, सो लास्ट couple of minutes left. I'm using my hotspot for laptop. Just give me a minute. In the meantime, किसी को सवाल है तो पूछ लीजिए। राकेश जी, हाँ, मेरा एक सवाल है, जो क्रिएटर आईडी, मेंटर एंड रिव्यूअर वो क्रिएशन है, सिर्फ जस्ट होल्ड ऑन, सॉरी राकेश जी, जस्ट होल्ड ऑन। इसमें और किसी को कुछ सवाल है तो पूछ लेना, मतलब फिर एंड में ओपन क्वेश्चन आंसर रखते। अब तक जो दिखाया उसमें तो कोई सवाल नहीं है। जो अभी लेटेस्ट जो दिखाया यूजर आईडी खुद का सेल्फ रजिस्ट्रेशन ऑन दीक्षा, मैं वापस लैपटॉप एक्सेस कर रहा हूँ, जरा एक मिनट। ठीक है, am I audible? यस यस। ठीक है, अभी मेरा लैपटॉप मैंने कनेक्ट कर दिया। सो let me just quickly check the last couple of slides so that I'll complete the presentation.
सो दिस इज द वे 6 दिन में हम प्रोग्राम लॉन्च करेंगे अगले हफ्ते। एंड इसका फायदा स्टेट को ये है कि आप डाइट्स, हाउ कैन डाइट्स कंट्रीब्यूट, तो जो भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं वो आप आपके लेवल पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ऑफ कोर्स जिसका अल्टीमेट परफॉर्मेंस स्टेट पे दिखेगा। तो निपुण भारत हो, विद्या अमृत हो, XYZ, आप इम्प्लीमेंटिंग रिकमेंडेशन जैसे नैस के ऊपर पोस्ट नैस इंटरवेंशन करना, ये मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के जून के लेटर में लिखा है। तो अभी आप जो MLP फॉर स्टूडेंट्स करोगे वो प्रिसाइजली पोस्ट नैस इंटरवेंशन है, तो आप वो रिकमेंडेशन केंद्र सरकार की इम्प्लीमेंट कर रहे हो। तीसरा, एडिंग न्यू कंटेंट टू द स्टेट रिपोजिटरी। जैसे अभी किसी ने सवाल पूछा, अगर मुझे कंटेंट बनाना है कोर्स के लिए, बिल्कुल अच्छी बात है। तो आप जब कंटेंट बनाओगे तो उसका फायदा स्टेट को ही होगा, उड़ीसा को, कि अच्छा कंटेंट स्टेट की दीक्षा में आएगा। टेस्टिंग ऑफ एग्जिस्टिंग कंटेंट, जो एग्जिस्टिंग कंटेंट ऑलरेडी है उसका भी टेस्टिंग आप की तरफ से हो जाएगा जब आप उसको यूज करोगे, और उसका फायदा है कि उसके क्वालिटी अपग्रेडेशन में फायदा होगा। क्रिएटिव एंड कस्टमाइज प्रोग्राम रोल आउट हो पाएंगे आपकी तरफ से, बिकॉज आप इंडिपेंडेंट है। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम हो सकते हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हो, FLN हो, एडमिनिस्ट्रेटर्स हो, XYZ, पेरेंट्स हो, टीचर्स हो। एंड लास्ट में इस सब का फायदा ये है कि इट विल हेल्प इन इंक्रीजिंग कंजम्पशन नंबर्स ऑफ एनर्जाइज टेक्स्ट बुक्स और निष्ठा और कोई भी प्रोग्राम। मतलब ओडिशा स्टेट का जो परफॉर्मेंस सेंट्रल लेवल पे देखा जाता है कोई भी स्टेट का, तो उसमें कंजम्पशन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने इतनी सारी चीजें की है, उसका अडॉप्शन क्या है, तो नंबर बढ़नी चाहिए। इन सब का फायदा आपके कंट्रीब्यूशन से होने वाला है। लास्ट स्लाइड कि दिस इज द एंटायर डिस्ट्रिक्ट कोलैबोरेशन मॉडल। तो ये डाइट के प्रिंसिपल, अभी जो भी जुड़े डाइट से लोग, उनको समझना जरूरी है कि आप यहाँ पर इंडिपेंडेंट हो गए। ओके, तो आपके पास ये यूजर आईडी आ गए, ये 3 आईडी ऑलरेडी बन चुके, जिससे कि आपको कोर्सेस का इंडिपेंडेंस मिल गया। ये 3 बन जाएंगे जिससे आप माइक्रो इंप्रूवमेंट प्रोग्राम कर सकते हैं। बट कोई भी ये प्रोग्राम आप डिजाइन करोगे, उसमें सपोर्ट दोगे, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिवली तभी होगा जब आपका जिला परिषद का एजुकेशन ऑफिसर आपके साइड में है, द DO। And of course, there is an additional DO academic, thanks to Aparna madam, Lipika madam, जिनकी वजह से there was a letter issued, which was also marked to additional DO academic, which is an important position in the DO office. तो आपको कोई भी प्रोग्राम DO ऑफिस से मतलब के साथ काम करके लॉन्च करना है, तो ही उसका अपटेक और अडॉप्शन होगा। ठीक है, और जैसे मैंने कहा ये SOP हम लॉन्च बहुत ही जल्द रिलीज करने वाले, ये कल तक रिलीज हो जाएगी, जिसमें आपको इस सारे सवालों का वैसे भी जवाब मिलने वाला है। फाइन, सो आई एम डन फ्रॉम माय एंड। नाउ लेट मी नो इफ एनी क्वेश्चंस। अपर्णा मैडम, इवन यू कैन आस्क अगर कुछ सवाल है तो, या लिपिका मैडम, या कोई भी ओपन Q&A। मेरा तो कुछ डाउट नहीं है, वो डाइट के सारे हो गया शायद। अपर्णा मैडम, अपने को अगले हफ्ते सारे डाइट से प्रोग्राम रोल आउट करना है, नेक्स्ट वीक। मैम राकेश जी बोल रहे हैं कि नेक्स्ट वीक सारे डाइट से प्रोग्राम लॉन्च आउट करना है। सारे डाइट्स तो नहीं कर पाएंगे। हाँ ठीक है, कुछ करेंगे। जितने होते हैं लेट से, हाँ जितने होते हैं। So we already have a 10, yeah, मतलब we already have the 10 list, but we'll try जितना हो सके उससे बढ़ के, मतलब I think हाँ 12 का तो है, तो 12-15 जितने। Yeah, we have 12 right now, including Khoda. ठीक है, I will monitor them. Yeah, so I think now somebody is raising hand. So PK classes. Prafulla sir from Bhadrak, I think he has raised. Yeah, Praful sir. सर ये जो पोस्ट टीचिंग स्टेप थोड़ा रिपीट कर दीजिए क्या कृपया। नहीं समझा नहीं, क्या पोस्ट टीचिंग स्टेप जो है, माने मतलब MLP का जो कोर्स टीचिंग स्टेप है। हाँ, कोर्स टीचिंग मतलब जो कुछ देर पहले मैंने दिखाया ना कि आपने टेक्स्ट बुक ओपन किया, ठीक है, आपने क्रिएटर आईडी यूज करके पहले लॉगिन किया दीक्षा में, फिर ओडिशा का टेक्स्ट बुक ओपन किया। हाँ जी, बराबर, वो वाला टेक्स्ट बुक जिसके ऊपर आप MLP बनाना चाहते हो, लेट से 8वीं साइंस, फिर आपने वो चैप्टर को सिलेक्ट किया,
फिर ऊपर जाके कॉपी एज अ कोर्स किया, बराबर है, फिर क्रिएट किया, ये वही है कोर्स टीचिंग का मतलब, वो है। और कोई सवाल? हाँ राकेश जी, बोलिए। हाँ तो मेरा क्वेश्चन कंटेंट क्रिएटर, कंटेंट रिव्यूअर, क्रिएटर एंड मेंटर आईडी को लेके है। तो जब हम वो टेम्पलेट भर के भेज देते हैं, हाउ मेनी डेज इट नॉर्मली टेक्स टू क्रिएट ऑल दिस आईडीज? हाउ मेनी डेज लगता है वो आईडी क्रिएट होने में? बट आपका मतलब क्रिएट हो चुका है ना कि कुछ बाकी है? नहीं, हम SCRT के बिहाफ में 3 आईडी एक्चुअली भेजे हैं व्हाइट लिस्टेड ईमेल आईडी से। तो उसका एग्जैक्टली नॉर्मली डेज कितना लगता है? तो ये कौन सी आईडी क्रिएशन की बात कर रहे हो? क्रिएटर, मेंटर, रिव्यूअर की प्रोग्राम Yes. डिजाइनर, प्रोग्राम मैनेजर? क्रिएटर क्रिएटर, मेंटर, रिव्यूअर, मैक्स 3 दिन, मैक्स 3 days। ओके। अच्छा, और किसने हैंड रेज किया है? ममिता मैडम पूछिए। जी सर, नमस्ते। नमस्ते। सर, वो जो कोर्स लेंगे हम लोग, वो कंटेंट किस बेसिस पे लेंगे? कोर्स लेंगे मतलब थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। जी, जैसे हम लोग कुछ कोर्स हम लोग पब्लिश करना चाहते हैं, तो वो एलो के ऊपर लेंगे कि किसके आधार पे लेंगे हम लोग? तो आधार 2-3 है, जैसे मैंने जी। कहा, एक आधार तो बड़ा क्लियर है कि जो आपका NAS का रिपोर्ट रिलीज हुआ है, NAS नेशनल अचीवमेंट सर्वे, ओके उसमें सर। जो उड़ीसा के वीक लर्निंग आउटकम्स है वो आप ले सकते हो। कोई जी। भी एक सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, साइंस, कोई भी एक जी सर। सब्जेक्ट आप लिया, 8वीं का आपने वीक एलो लिया, उसके ऊपर 2 एलो आपने उठा लिए, और उसके ऊपर दीक्षा के उड़ीसा के टेक्स्ट बुक में वो कौन से चैप्टर में वो एलो का कंटेंट कवर हो रहा है वो आप देखोगे। दैट्स इट। क्रिएट कुछ नहीं करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है। जी सर, थैंक यू। थैंक्स। और किसने हैंड रेज किया है? हाँ, अनीता बेहरा जी। नमस्ते सर। मुझे बस ये जानना है कि असेसमेंट के लिए यहाँ पे दीक्षा में कैसे अपलोड करते हैं, और वैरायटी टाइप्स ऑफ टेस्ट आइटम को जब हम अपलोड करेंगे तो उसका कुछ अलग प्रोसीड्योर है, या फिर हम कैसे करेंगे? तो ये थोड़ा सा बता दीजिए। तो असेसमेंट कैसे बनाना है वो आप एक बार हेल्प सेंटर में जाके जरूर देखिए। तो जी। असेसमेंट भी 4-5 प्रकार के, फिल इन द ब्लैंक्स, फाइंड द फॉलोइंग, MCQ, ड्रैग एंड ड्रॉप, ऐसे, एंड सेंटेंस में रिसीक्वेंसिंग। तो ये 5 एरियाज है, यू कैन यूज एनी ऑफ देम एंड यू कैन क्रिएट अ रिसोर्स। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक्स। बट अभी जो आपको अगले हफ्ते लॉन्च कर रहा है उसके लिए आप कोई नया असेसमेंट स्टिच करने का मत सोचिए, जो भी एग्जिस्टिंग कंटेंट डिजिटल टेक्स्ट बुक में है वही यूज कीजिए। और कोई? राकेश, हम एक we can do one thing. Will be because ये already record हो रहा है ये meeting, so we can share the meeting recording with the diets, and also we were thinking of एक WhatsApp group create करने के लिए, जहाँ पे आप हो और then अपर्णा मैम, लिपिका मैम हो, और डाइट से एक कोई जो लोग मतलब क्रिएट करेंगे कोर्स एंड ऑल, सो यू कैन बी द डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। सो हम लोग वो प्लान करें कि एक WhatsApp ग्रुप हो जाए। So even add Athira to it because even Yeah. she to know क्या सवाल आ रहे हैं, we'll answer that. हाँ जी, कोई बात। So we can do that. I think let's take last 2 minutes break because मुझे 12:15 को आसाम स्टेट का कॉल है। तो I think डाइट बालंगीर ने हाथ उठाया, आपको पूछिए। सर, हम इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट को कैसे ट्रैक करेंगे? कोई कोर्स कितने प्रोग्रेस हो रहा है इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट का? तो आपको बेसिकली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ट्रैक करना है कि अगर, हाँ अच्छा पॉइंट है, बाय द वे एक पॉइंट मेरा बताना रह गया, थैंक्स सो मच, कि अगर मैं बालंगीर हूँ, अगर मैं खोरदा हूँ,
और मैं स्टूडेंट के लिए कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, और वो स्टूडेंट का कोर्स 8वीं या 9वीं के बच्चों के लिए। तो सबसे पहले तो मुझे पता होना जरूरी है कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में 9वीं में कितने बच्चे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो मेरा टारगेट ऑडियंस है। 5,000 है, 10,000 है, ठीक है। बिकॉज उनके बेसिस पे जब मैं ये रिपोर्ट निकालूंगा, कोर्स एडॉप्शन रिपोर्ट जो आपको मिलता है, उसमें दिखता है नंबर ऑफ एनरोलमेंट जिले इस कोर्स इस बैच के लिए कितने हुए, कितनों ने कंप्लीट किया, ये 2 डेटा आपको दिखता है, ठीक है। अभी दूसरा सवाल आपका, जब वो बैच आप बनाते हो तो आपको बैच लेवल का एक रिपोर्ट मिलता है, जिस रिपोर्ट का नाम है कोर्स प्रोग्रेस एग्जॉस्ट रिपोर्ट। कोर्स प्रोग्रेस एग्जॉस्ट, उस रिपोर्ट में आपको इंडिविजुअल रो मिलते। अगर आपके कोर्स को 8,000 बच्चों ने लिया तो 8,000 रो रहेंगे उसमें, 8,000 रोज, ओके। बट फ्रैंकली आई विल नॉट एनकरेज यू कि आप उतना ड्रिल डाउन अभी कीजिए। आपके जिले में 10,000 बच्चे हैं तो आइडियली 80% ने एनरोल करना चाहिए, आइडियली, क्योंकि एक्सेस का भी इशू हो सकता है। तो आप वो कोर्स एडॉप्शन रिपोर्ट देखते जाइए, कोर्स एडॉप्शन रिपोर्ट। वो सर दीक्षा में मिलेगा क्या? हाँ बिल्कुल मिलता है आपको। जो रिपोर्ट व्यूअर ये राइट मिला है, रिपोर्ट व्यूअर ये जो यूजर का राइट मिला है रोल, उससे आपको मिलता है। हाँ, तो कोर्स एडॉप्शन रिपोर्ट आपके लिए काम का है कि उस बैच के लिए कितने एनरोलमेंट हुए, कितने कंप्लीशन हुए, आपको वो ट्रैक रखना है, ठीक है। थैंक्स प्रिंसिपल, इट वाज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, थैंक्स सो मच।